Yes, we can start the session, sir. Over to you. Yeah, sure, Amar. Thank you. So I'm sharing my screen, guys. So directly I'm jumping to the topic of the day one. So first I will discuss the agenda, then after that I will start. Like what we are going to do today. I hope my screen is through and you guys are able to see this. Yes, it is visible. Good. Thank you. So let's start from here. So what is the topic for today? So basic things we'll do today. This is day one. So GUI access is the first thing that we are going to do today. This is the first thing we shall be doing. Second, configure interfaces. Okay. Configure basic routing. Configure policies. All right. Configure NAT. These all the things which we are going to discuss today in this day one class. Understood, guys? Yes, sir. Yes, So let me make it little good. Mono styled, I think is the good method of making this. So this is the agenda for today. Yes. So first we'll be making the lab from scratch. So see, this is the blank one, okay? So what I will do after finishing this class, I will close this lab and we'll take, for example, let me make the first from scratch and let me make a folder for the same. So let's make a folder that is with the name of Fortinet firewall. So everything I am doing from scratch, okay? Nothing is already been there or ready. Everything I will start like also I will make and build labs topology from scratch. So you guys will have understanding how I'm making that. So the first lab I'm saying day one, okay? Day one firewall, Fortinet, first lab. So I will take only one FortiGate firewall, Fortinet. What version I am taking, guys? Remember from yesterday, I am taking Fortinet version 7.2. 7.0.3. This is the RAM which I have allowance to take. This is allowed in free version. This is actually the version which is registered already with my name. Okay. This is actually I got as a license for educators. So I have allowance of taking one CPU and RAM up to 1024 MB. If I will increase this size, then they will ask me to register or pay some amount for that. But that is allowed for me free of cost. Till here, up to this specification, I'm allowed. So I just took one Fortinet firewall. And what I will do now, understand guys. So in the company, most of the time, you have similar type of topology you guys will see or similar type of infrastructure you guys will see.
Same thing I am going to simulate here. This is not simulation, this is emulation actually. So let me take 4 routers. I took 4 router. One sec, guys. Why I'm deleting, I just let you know. I want all the routers names should start from R1. Do not want to Cisco IOL. Anyway, guys, you have idea like why I'm taking this L3, why I'm not taking L2, all these. Anyone have idea like how you can access EVE-NG lab or some PNet level lab? Any of you have been through this, guys? Just tell me, come and tell me if you have idea what I'm doing right now. If no idea, then later on, once you will start doing lab, then I'll be assisting you out. I will take another session or record something and will share with you guys, so you will have understanding how to make these labs. You're 4 taking all of routers. this for L3 switches, L3 routers, L2 switches, right? Yeah. So guys, suppose this is your outside network. We are just making here logically, so we will have understanding in our mind and mapping in our mind. So this is outside, let's suppose. This is inside. Inside means where your local users are sitting. Your LAN, your different departments, HR team, down the leg, HR team, sales team, everyone is sitting here beneath that. And this is the router, this is the gateway who is helping your all the LAN users to go on internet. And this is, I am simulating here like internet. Okay. And this is my DMZ zone. What is DMZ, guys? Demilitarized zone, where your all the servers and other devices are available. And this is another demilitarized zone. So here we have different type of servers. Let's suppose here we deployed some public server. Public servers means what? Means servers that is deployed there with the purpose of so that people from outside, people from internet can access that server and can get benefited. Just suppose Google DNS server is there, guys. You guys already know, right? 8888. So what is the purpose of that DNS server? That is available for public use. So anyone wants to resolve any domain, then they directly connect to Google's free server. The similar wise, for example, you have some mail exchange server, you have some DNS server, or you have some different type of server which you deployed in your company here. So this is I'm just taking it as a DMZ4. This is DMZ3. This is your outside, which is here like internet, and this is your inside where your all the LAN users, your users of the company are sitting. Okay. In between, I am putting a firewall so that the firewall can take care for all the people. Once they are going through, then the firewall will be in between and it will be checking what is going on from SSL decryption, from taking care if you are going on the right website or not. So all the things, who will take care here? Your FortiGate firewall, guys. So I am putting that firewall here in between. And I am giving it a name that is firewall 1 to make it easy. So I'm connecting it like, see guys, let me connect this here. One sec, guys, let me take a PC as well here. So what I'm taking for the PC, that is the management cloud. Why I'm taking this management cloud? If I will connect with this management cloud and the port 1, so what happened here in this, guys, understand. So
the version I'm using of this Fortinet firewall, once I will connect its port 1 with any internet facing device or anything like cloud. So what will happen? This particular port FortiGate firewall considers as management port. Management ports are there for what purposes, guys? Anyone have idea? In any device, what is the purpose of management port? Tell me. Anyone have idea? Maybe for transferring images for the devices, if you have to conduct some, you have to transfer some files. Yes, for devices, if you talk in the context of devices, so management ports are there so that you can do initial configuration, you can access that device using that port, right? Like management related things you can perform using that port. So if I'm connecting this port 1 with anyone, so by default FortiGate firewall will apply what? All the management related things on that interface. That's why I'm connecting, okay? Good. Excuse me, sir. So let's. तो सर इसमें Yes, any कंसोल पोर्ट question? नहीं होता? Mm-hmm. कंसोल पोर्ट नहीं होता? इन FortiGate you will like console port और port 1 दोनों एक ही चीज है इसमें. जैसे अपन उधर कंसोल पोर्ट बोलते हैं ना, कंसोल पोर्ट करके जो चीज होती है मैनेजमेंट पोर्ट को ही तो बोल देते हैं हम. सेम करेक्ट? है दोनों, सेम है दोनों. हाँ, तो कंसोल पोर्ट कंसोल केबल लगा के लेते हैं ना हम एक्सेस अपने लैपटॉप से या पीसी से. यस सर. तो बात एक ही है. बात एक ही है. सो यहाँ पे पोर्ट की हो गई कमी दोस्त. अब क्या करा जाए? चलो पोर्ट बढ़ाए. 4 Fortinet पोर्ट दिया था इसने, तो चलो मैं 5 कर देता हूँ. लेट्स सी इफ इट इज टेकिंग इफेक्ट. It is saying you need to restart, but I'm not doing that. I already got that port. Okay, good. Got it, guys, right? This is the topology, first topology. This is our server area. This is our server area. We will give it a name DMZ. Let me write it down for you guys if that will be good for you. DMZ3. Okay. And let me make a duplicate of it. This is DMZ4. So DMZ, demilitarized zone. So the purpose of having such type of zones, only purpose is you are putting on all your servers in these areas and you are safeguarding them using some firewall or some type of security policies. So once anyone is coming from internet, so how they will reach to your DMZ area? They will reach through this firewall. So once they will be passing through this firewall, you just need to go on this firewall and apply policies, apply set of rules, and your firewall will take care for further things. If anyone from outside having not a good intent is coming to your DMZ3 or DMZ4, so this firewall will take care for that bad person, okay, and will knock him out. Then and there, here only, it will not allow them to reach till your DMZ area. Similar wise, nobody from the outside can reach your local area network as well. So because he is residing in between and will take care for all the things. Just like security guard sits. No, I cannot relate with the really with the security guard. No. The security guard having AK-47 in his hand. Similar type of thing you have in firewall, okay? Not directly relatable with the human security guards. They are the machines. These are the machines and really very powerful. Okay. So let's start each device and let's start configuration of the same. Okay. Come up, man. So I'm going here, set up node and start all devices. Let them come up. Any questions so far from the topology part or any confusion from here, guys? Anyone, please come up and ask.
For this topology, why we need only use 4 routers? Why not 2? Why not? 2 or 3. Why are we using router? Because we just need to understand only FortiGate firewall. This is the first agenda. But to do routing, to do netting, to go on internet, taking access to deploying policies, we need some reference, okay? So that we can go and safeguard all these our local area network here, let's suppose. And let's make this DHCP server or DNS server. So if anybody from this area, from internet, untrusted network wants to come and resolve their DNS, then they can come and we can see here all the logs, and we are allowing anyone who is coming outside to my DMZ, all these things to checking all the functionalities. What is the agenda for today? We took here routers, okay? Even we can take other devices as well. Why not? But this is for the demonstration purposes, guys. So what is your requirement? What do you want to take here? Just ask me. I'll be taking that device. Yes. My doubt is that can't we do with 1 router, 1 firewall? Yeah, that is my doubt. No, why do you want to do so simple? No. Yeah, you can do. You can do. Even you can do, you only taking one PC and one firewall. That also will work. Okay. What I will do, yesterday class, if you remember, how many devices I took there? How many devices were there in that lab? You were there yesterday class? Yes, yes. So Abhiram, if you remember, so we took only one PC and one FortiGate firewall, and that firewall had internet connection. That's it. So also we can take that, but why I'm taking all these here? Because I want to show you routing, basic routing parts here today, like at least default routing and some static routing I will perform. And also I want to perform some netting thing here. Once this user is going outside, so let's check if they are getting translated into the public IP or not, which is here on our port 3. Yeah. Okay. Yeah, And yeah. for the later we will be also configuring all these routers. So we want to take it at that level. As in our infrastructure or in our enterprise companies, we can see similar type of things or infrastructure. So once you will be going there, then you will have good reference to relate with the live scenarios. Okay. Making sense? Yeah, yeah. Thank you. So let's start. Anyone else has any question? Please ask. I'm going to start configuration, guys, here. So what first we will do here? Take a quick snip of this particular topology, guys, if you don't mind. So once I will be doing any configuration, you will have idea like what I'm doing. Yes, Yes, sir. please take a Yeah. snip of that. Done, sir. Done? Yeah. So basic configuration on your Fortinet firewall. What was the name? Firewall 1. So what we will do? Let's go and see. I'm just clicking on it. Yeah, this is in HTML. That is fine. It's up. Keep your eye. I just put admin here and password is blank. So once I will enter, you are forced to change your password. Please input a new password. I am just putting 1234. 1234. Why I am putting this type of password? Because we are doing live here only, but this is really not recommended to use in your production network. So for example, any of you got chance to work with your production firewalls, don't use such type of passwords.
All right. Why? Because Yes. the password should be strong. So this is like you made a robot and that robot has password set. So anyone wants to enter in the programming of your robot, so he will have to pass that password. So what type of password you will put in your robot, guys? Tell me. 1, 2, 3, 4. I mean, for initial configuration, if it's for personal use, then yeah, we can put that. But if it's in production, we can't afford to put that sort of password. Yes, if you have licensed version, also I will not recommend even you use similar type of password or very simple password, because it is not going to ask many times to enter. Once this is in your control, even it is asking, that is okay. The loss of your property or loss of your services is always, yeah, should be less, right? Yes. If you are putting password, if you are putting hard password, that is okay. Please put. If you have licensed version or if you have so important configuration already made on this particular FortiGate firewall, please make sure to put. But I put for now 1, 2, 3, 4. That was the recommendation, guys. Please make a note of this. Okay, I am in. I am in. So what is the first thing which I'm going to do here? Very simple. Config system. What does that mean? I am going to do configuration of up to my system level, and what thing I am going to do here? Let's see, guys. This is the interface. Why I am doing this? So that I can take GUI access, okay? And which port I will edit? Port 1. I will do configuration on port 1. That is my management port here. By default, it takes management port of port 1. Interface. Right now, I'm in the interface mode. See everyone. Config system interface. I'm in interface mode. And what next? If you will do like this, see what it is saying. It is saying in show, it is saying full configuration, show full configuration. I am not going to do anything. I am just going to do edit. After that question mark, how many ports you have, guys? Now you can see this in detail. See, let it come up with the again. Edit. See, one link you have already, that is 40 link, that is statically there, that has also IP, if you guys can see. Yes. If anyone remember yesterday class, what I said, one person asked me, if you have to give IP to your any port using DHCP, then how will you give? See here, guys, how I gave IP. I did nothing. I just connected my port 1 with my VMnet cloud. Yes. And see what happened here. It by default took this IP. Have I given? No, it by default took. But this is actually not recommended. Always use static DHCP IP in your management devices. Don't go, I mean to say, on your management ports. Don't go with the DHCP. Why? For example, suppose your DHCP server got restarted, so you will be getting different IP. And you have engineers at different locations. They want to take access of your that particular device or firewall. They'll not be able to take access of that. So this is again going to create issue. So again, another recommendation, use static IP in your device. Management port, right? Yes, definitely. Management port, not only management port, sir, also all other ports. Why? These are the important devices. Also on the router ports. Do not use any static IP in your, if you do not want in your local area network, that is okay. Why? Because there are so many users in your company. How can you go and again configure static IP? Even in the smaller level companies, people do assign static IP there as well, but not recommended, because you have DHCP server and you don't care if people are getting any IP, okay? Because they are users. You just need to do what? You just need to take care here on the devices who is administrating the final things, like who is allowing them to go on internet,
who is taking care for the policies, all these things. Make sure you are defining IPs there in static mode only. Understood? Making sense, guys? Yes, sir. Yes. So I am going to edit port number 1. Edit 1. And you see if what is the mode here, guys? This is in the DSCP. First, I will change this into the, oh, sorry. Edit port 1 like this. Port 1 by default is setting. Set Sir, one mode. thing. Excuse me, sir. Yes. Yes, we've got this message from the management to use English instead of just English. Use Hindi as well. What? Sorry. I'm saying we got this message here. सर the meeting chat. इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स प्लीज. ओके ओके यस. गाइज, ये समझ में आया सबको अभी तक जो मैंने किया? क्या Yes. किया मैंने बता देता हूँ. इधर देखो. नो इशू गाइज. सो क्या करते हैं ना, अपन हिंदी में स्टार्ट करते हैं अभी के लिए, क्योंकि आई थिंक ऑल द पीपल अंडरस्टैंड हिंदी. यस, सबको हिंदी समझ आती है दोस्त? यहाँ पे Yes, जितने sir. लोग हैं सबको हिंदी आती है? एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज kindly use mixed language procession. Sir, English. Okay, no worry. Everyone understand Hindi. That is good. Anyone who doesn't know Hindi, please message here. No one? That is fantastic then, guys. Okay, see. So हिंदी में स्टार्ट करते हैं. सो अब मैं क्या करने वाला हूं, इधर देखो. सबसे पहला काम मैंने क्या किया, पासवर्ड चेंज किया. और कैसे किया दोस्त? एनीवन हैव आइडिया? अच्छा, नहीं है आइडिया, कोई बात. It asked for, oops, sorry, prompted for username. What you entered? Admin. Okay. Password blank. Once you did, what you did after that? Change the password. And what is It that, will guys? auto- 1, 2, 3. It will automatically ask for the new password, na? Yes, yes, correct. Oh, ये ऑटोमेटिक ही मांगेगा, क्योंकि देखो ब्लैंक है मींस क्या करोगे आप? आपने एडमिन डाला, यूजर नेम और एंटर कर दो जी, क्योंकि पासवर्ड है ही नहीं उधर. ये ब्रांड न्यू की बात है. जब आप ब्रांड न्यू ले आ रहे हो सकता है आप जब नया डिवाइस अपने कंपनी के लिए खरीदो तो हो सकता है कोई पासवर्ड लगा के भेजे उधर से, तो दैट इज अनदर थिंग. बट अभी नॉर्मली अगर बात करें, जब आप इस तरह का बॉक्स लाते हो ना, उसमें पासवर्ड ही नहीं है, लेकिन आप उसको पहले यूज करोगे, फर्स्ट टाइम यूज में लाओगे, इससे पहले आप पासवर्ड अपने हिसाब से सेट करोगे. सर, एक तो क्वेश्चन इसमें है तो यहाँ नहीं पे। है. हाँ जी. जैसे आप पासवर्ड की भी बात कर रहे हो, जैसे नया बॉक्स जब आता है, जैसे प्रोडक्शन वाला, जैसे कोई नया बॉक्स ला रहे हैं, और जैसे आपने बताया अभी कि ऊपर से जैसे जैसे वेंडर ने पासवर्ड लगा के भेजा है ना? जी. तो जैसे एक एग्जांपल है कि सिस्को के केस में ना एक यूएसबी बूट का ऑप्शन होता है, हम्म. तो इसमें भी होता है क्या फायरवॉल में भी, कि मतलब यूएसबी बूट करके फिर उसको रीसेट कर सके करके? हाँ, आप कर सकते हो रीसेट. आप रीसेट कर सकते हो. क्या होता है कि मैंने जितना तक देखा है अभी तक, लोग ब्लैंक ही मंगा लेते हैं. ठीक है. अच्छा। तो उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एकदम ब्रांड फैक्ट्री न्यू है, वो लेके आए, पासवर्ड खुद डाला उन्होंने, अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दिया. अच्छा, राइट. नहीं अगर वेरी हो mostly भी। सिंपल. mostly distributor without password ही देते हैं. यस. सो कुछ जने देते भी हैं पासवर्ड लगा करके, कुछ जने नहीं देते. अब अगेन वही डिपेंड करता है कि आप उनसे मांग रहे हो पासवर्ड लगा करके कि नहीं. अगर नहीं मांग रहे हो तो ब्रांड न्यू लाके दिया, प्री सेल्स वाले ने आपको डिलीवरी करवा दिया, उनका काम खत्म हो गया, सपोर्ट दे रहे हैं आपको. या हो सकता है उनका इंजीनियर आए आपको इंट्रो देने के लिए, लाइक हाउ दीज डिवाइसेस विल वर्क, क्या क्या इसमें चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके. तो उसमें तो उनका टैग तो हो रहता ही है आपके साथ हमेशा. ठीक है जी. पासवर्ड आपने चेंज कर दिया. फिर हमने क्या किया? दिस वाज द स्टेप नंबर 1. ये स्टेप नंबर 1 था, हमने पासवर्ड चेंज किया. स्टेप 1 में क्या किया? सर हिंदी में ही कंटिन्यू रखिए सर प्लीज. ठीक है. हमने क्या किया? स्टेप 1 में पासवर्ड चेंज कर दिया. और अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 में. अब उसमें क्या करने वाले हम? आईपी देने वाले. किसको?
set up Leading. Firewall, IP. firewall. Firewall. Yes, on the firewall port 1, so that we can take access of GUI. हम क्या कर पाए, देखो इंग्लिश में लिख रहा है और बोलूंगा हिंदी में, डोंट वरी। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, आईपी देंगे फायरवॉल के पोर्ट नंबर 1 पे, सो दैट हम इसका क्या कर पाए, GUI एक्सेस ले पाए। गुड। कैसे करेंगे, हमने किया एक कमांड टाइप जिसका नाम है कॉन्फ़िग, फिर उसके बाद लिखा सिस्टम, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, इंटरफेस। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं इंटरफेस लेवल पे ग्लोबली जाकर के क्या करने वाला हूं, कुछ चेंज करने वाला हूं। उसके बाद लिखा है एडिट पोर्ट 1, जिस पोर्ट पे मुझे कुछ करना था, फिर लिख दिया हमने सेट मोड स्टैटिक। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक मोड में आईपी देने वाला हूं। अगर इसी मोड को आप जाकर के डीएचसीपी कर दोगे तो डीएचसीपी में जाकर के अपने आप आईपी की मांग करेगा, मतलब ये सर्च करेगा, ये सेंड करेगा डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर स्टैटिक है तो कुछ नहीं करेगा, शांत बैठा रहेगा और ये वेट करेगा भाई कोई मुझे आईपी तो दो, और यहाँ पे हमें आईपी इसको देना है। सेट मोड स्टैटिक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेट आईपी। तो चलो करते हैं, जो करेंगे वही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, ठीक है जी, एडिट पोर्ट 1, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी, सेट आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। सेट आईपी के बाद हम लिखेंगे आईपी, कल वाली ही आईपी ले लें, और उसके बाद फिर आपको मास्क भी देना पड़ेगा, या तो ऐसे दे दो जैसे दिया मैंने अभी, या तो आप एक तरह से और भी दे सकते हो, डायरेक्ट ये स्लैश वैल्यू भी ले लेता है। दोनों का मतलब नहीं ले रहा, कह रहा है नहीं लूंगा मत दो, फिर नहीं ले रहा तो यहां लेगा, ले लिया, एकदम डायरेक्ट लगाओ, स्पेस था इसलिए नहीं ले रहा था। तो दो तरह से आपने आईपी दे दिया, एक तो चाहो तो सबनेट मास्क लिखो, या आप स्लैश वैल्यू डायरेक्ट लगा दो, बोथ द वे विल वर्क। ठीक है Bro, what दोस्त, is the meaning of /24? व्हाट डज स्लैश 24 Silent. मीन? Yeah. Subnet identification. सॉरी आई Okay. डिडंट गेट योर क्वेश्चन, कैन यू कम अप अगेन? Yeah, you are entering this subnet mask at 255.55.0, no? And once again you return this /24. What's the difference between them? No difference, just to show you, like we have two methods, like either you can go like this or this, both will work, I was trying to tell here. Okay. Yeah. Now after that, very important concept here, that is set allow access, that is important, ये बहुत ही important है, set allow access करना पड़ेगा, नहीं तो by default कुछ भी allow नहीं है जी। set allow access, सबसे पहले तो हमें HTTP चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए, टेलनेट भी हो सकता है लेना पड़ जाए, कर दो SSH, क्योंकि देखो टेलनेट के साथ में हमारा हाथ अच्छा, हम लोगों का अच्छा सेट है, हम टेलनेट लेते हैं, SSH, और पिंग कर दो, सो दैट पिंग भी कर पाऊं मैं इधर से बाहर से अपने लैपटॉप के ही। और क्या, मुझे लगता है इतने में हो जाएगा काम। ये जो भी लाइन लिखने वाला हूं इसके बाद, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है END। END क्या करता है दोस्त, END अगर करोगे तभी एग्जीक्यूट होगा सारा कमांड जितना आपने ऊपर लिखा है अभी तक। अगर END बिना करे आप एग्जिट हो गए तो कोई फायदा नहीं हुआ जितना आपने अभी लिखा है। ये एडिट पोर्ट 1, सेट मोड स्टैटिक, आईपी दिया है, कुछ काम नहीं करेगा। जैसे आपने एंड किया मींस आपने बोला जी कर दो जी काम डन, ये एंड गेम चेंजर है जी। FortiGate firewall end, remember this end means not end means starting, okay। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आईपी एड्रेस दिया, आईपी के बाद एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाता है। हमने आईपी क्या दे दिया, यही दिया, /24, सेट अलाउ एक्सेस, HTTPS, HTTP, टेलनेट, SSH, पिंग, और साथ में हमने लिखा एंड। एंड ध्यान रखना दोस्त, एंड का मतलब बहुत कुछ है इसमें, एंड का मतलब एंड नहीं, एंड का मतलब बिगिनिंग है इधर कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया अभी तक कुछ भी, जितना मैंने किया इतने ही कमांड लिखे हैं दोस्त, और ये सबका allow मतलब पता है। access, okay,
अलाउ एक्सेस का मतलब आप पोर्ट नंबर 1 पे इन सब चीजों का एक्सेस अलाउ कर रहे हैं, इन प्रोटोकॉल्स को आप इनेबल कर रहे हो। ओके, नो इशू। मीन्स मैं ये कह रहा था, कोई इसमें एक चीज अगर हम भूल जाते हैं बाय मिस्टेक, देन वी जी, कैन री एडिट दिस पोर्ट। यस यू कैन री एडिट। लेकिन ओके री एडिट ओके। में एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप आए और पता लगा आपको, मैं HTTP भूल गया था बाई चांस, ठीक है, हम्म। आप आए बोले यार HTTP को मैं इनेबल कर देता हूँ, तो ध्यान रहे इन सबको भी इनेबल करना पड़ेगा आपको उस समय। अच्छा, दोबारा से। हाँ, क्योंकि ये क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा उसी के ऊपर। ओके ओके, बाय गॉट डिफॉल्ट इट। ठीक है, एचटीटीपी तो इनसिक्योर होता है ना, अनसिक्योर होता है, तो वो प्रोटेक्ट शायद उसको लेता नहीं ना एचटीटीपी, वो एस हाँ को लेता हाँ है ना ठीक वो। है, नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग कि जैसे मान लो आप, चलो HTTPS को ले लो, हम्म। आप HTTPS पे यूज कर रहे हो आप अपना GUI मोड, क्या होगा आप इशूज में, आपने इसको इनेबल ही नहीं किया तो आप एक्सेस ही नहीं पाओगे। मैं आओ करके दिखाता हम्म। हूँ, इधर आता हूँ। कौन सा पोर्ट था, वन। यही मैंने दे दिया, टेलनेट का एक्सेस दे दिया, SSH का एक्सेस दे दिया, इसी का दिया, हम्म। एंड। क्या चल रहा है अभी देखो, पोर्ट एसएसएच नंबर 1 पे वगैरह। देखो एक बार गाइस, सब लोग क्या क्या अलाउड हो गया, फिर से ओवरराइड कर दिया इसने। हम्म। पहले हमने ज्यादा किया था, अभी ओवरराइड कर दिया। अब अगर मैं जाऊं, क्या IP दिया है 1.100 ना, अब मैं जा रहा हूं, पता क्या कर रहा हूं, देखो मैं अपने सिस्टम के ब्राउजर पे गया और यहां से ओपन करना चाह रहा हूं 1.100 को, मुझे एक्सेस मिलेगा? नहीं। नहीं मिल रहा। अब पता लगा कि सेम क्वेश्चन पे आते हैं। अब सर को हम्म। पता लगा, अरे यार मेरे को ना HTTP अलाउ करना चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं है। ओके, फिर क्या करा जाए भाई, अब लो करते हैं। आप यहाँ आओ, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट अलाउ एक्सेस, HTTP, HTTP आपने क्या किया, एंटर कर दिया, ठीक है, एंड कर दिया। अब आपने ध्यान नहीं दिया, आपका टेलनेट SSH भी चला गया। ये ओवरराइट हो गया। आपने ये दोनों कर दिया। अब आप इसलिए ध्यान रखो, जब अगली बार आओ ध्यान रहे, पहले यहाँ से देख लो कि क्या क्या है, उसको भी आगे उसमें ऐड कर दो, नहीं तो आपका ये जो हिसाब किताब है उड़ जाएगा। देखो करते ही आ गया अपने आप एक्सेस, एडमिन 1 2 3 4। ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात सबको? Yeah. यस सर। आप यहाँ से भी होस्ट नेम चेंज कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते थे होस्ट नेम चेंज, यहाँ से भी ऑप्शन है आपके पास चेंज करने का। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, एक Bro, बार इस पे every जाओगे time we तो need बहुत सारी to. चीजें आपके पास आएगी, जैसे सेट होस्ट नेम, आ रहा है होस्ट नेम चेंज करने का, यहाँ से भी कर दिया मैंने फायरवॉल 1। ठीक है, अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, एंड करूंगा तो ये क्या कर लेगा, अपने आप ले लेगा। मैं फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करके दिखाता हूँ आप, अगर मैं इसको, मैंने लेटर पे किया, ये सब लेटर ही कर दिया, कुछ खोल ही नहीं रहा हूँ मैं, मान लो ये ओके कर दिया। अभी नहीं, रिफ्रेश करो एक बार पेज को, फायरवॉल 1 हो गया ना अपने आप। तो ये हम वहां से भी चेंज कर सकते थे। बाकी यहाँ से करने का ज़्यादा सही है, क्योंकि जब आप कंपनी में के अंदर काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इधर चांस नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी L2 L3 पर्सन के पास इसका एक्सेस हो, आपके पास CLI का एक्सेस ही ना हो, और आपको उसने यूजर का एक्सेस दे दिया है, आप ये एडमिन नहीं हो, आपको उसने अलग प्रिविलेज दे रखे हैं, उसने यूजर क्रिएट कर रखा है, आपके पास प्रिविलेज ही अलग है। ठीक है, डिवाइस एडमिन का एक्सेस आपके पास पूरा नहीं है, तो आपको क्यों देगा पूरा? आप समझ रहे हो बात को? तो उस केस में Bro, ज्यादातर आप अगर यहीं से जानोगे ज्यादा सही है। यहां तक किसी bro, कोई every प्रश्न है time, दोस्त, पूछो। yeah, every time we need to write the same code. Can you open one's command prompt? यहां से काम चल जाएगा कि अलग पे आऊं? Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. ओके, ओके, गुड। So if you want to add some more protocols, so we need to write from the starting ones, like config यस, system interface edit. Okay, हाँ जी, can't हाँ जी, we यहाँ से। do? Okay. आपको यहीं से जाना पड़ेगा सर। आप पहले जाओगे कहाँ पे, बोलोगे ना अपने उसको, कमांड दोगे भाई कि मैं सिस्टम के अंदर जा करके
मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ ग्लोबल लेवल पे और इंटरफेसेस को। तो जितने भी आपके सिस्टम में इंटरफेस हैं आप उस पे आ जाओगे। फिर आप जिस पोर्ट पे करना चाहते हो वो चीज़, उस पोर्ट को सिलेक्ट करोगे। ये तो मैंने आईपी दिए थे, इसको करने की जरूरत नहीं, एक बार दे दिया ना आपने। ये जो चीज़ चेंज करोगे ध्यान रहे कि भाई ओवरराइड कर देता है ये। ठीक है। इट इज नॉट So if लाइक we योर सिस्को डिवाइसेस। सिस्को डिवाइस पे कई बार हम डीएनएस सर्वर का आईपी देते हैं, तो आप जितने दोगे उतने लेते चला जाएगा, ओवरराइड नहीं करता वो। समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कोई? यस कभी सर। आपने डीएनएस सर्वर डाला है, नेम सर्वर, आईपी नेम सर्वर करके डाला हो आपने अपने किसी राउटर पे? तो वहां पे जब आप नेम सर्वर करके डालते हो, जितना दोगे तो उतना प्राइमरी सेकेंडरी करके और तीसरा चौथा पांचवा लेता चला जाता है वो। सारा कुछ ओवरराइट नहीं करता हो। लेकिन कभी किसी इंटरफेस पे जाके आईपी देते हो, क्या होता है? ओवरराइट हो जाता है ना? वैसा ही है ये। तो ये ओवरराइट हो जाता है, ये इसका फंक्शन है। अगर ध्यान रहेगा तो अच्छा रहेगा, भूल जाओगे दिक्कत होगी, है ना? तो ये चीज है जी। सर एनी अदर जैसे अब क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? bro, if यहाँ we पे not हमने जैसे given या गो एट अभी रमेश भाई। yeah, bro, if we not given the end keyword, what happens? Can we open the in browser this IP address or we नो, can't? मैंने बोला तो यही तो मेन है भाई। जितना आपने काम किया सर ना, उसको Okay. एग्जीक्यूट करने के लिए एंड इज मैंडेट। एंड, एंड का Okay. मतलब ही तभी होगा वो सेव। सेव जैसे लिखते हो Okay. ना उधर की, राइट मेमोरी करके एक कॉन्सेप्ट होता था, लिखते थे उधर। एंड का यस, किधर? मतलब राइट लिखते राइट हैं एंड सेव। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए। हाँ जी, वैसा ही समझो ये। Okay. राइट एंड सेव। एंड का मतलब एग्जीक्यूट यहाँ पे। यस, एंड का एंड मतलब का मतलब आपने एग्जीक्यूट कर दिया कॉन्फ़िगरेशन कोड। इज सेव्ड। करेक्ट Okay. करेक्ट, यस, 100%। देखो ये प्रश्न अगर आ रहे हैं पहले दिन में, गुड है। पहले दिन आ रहे हैं, उसके बाद तो आने वाला नहीं, क्योंकि इतना सिंपल है। इतनी बार आप लिख दोगे इसका लैब करते वक्त, आपको याद ही हो जाना है ये। और जब एंड बिना लिखे जाओगे, समझ जाओगे कि बिगनिंग नहीं हुई मेरे इस वाले कॉन्सेप्ट की। एंड मतलब बिगनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, रिमेंबर दिस स्लोगन। ठीक। यस यस। Yeah. सो आते हैं पॉइंट पे भाई, करते हैं कुछ काम। चलो, तो डैशबोर्ड मैं आज नहीं आपको नेविगेट करवा रहा हूँ, डैशबोर्ड कभी भी करवा दूंगा आपको नेविगेट। ओके, बहुत सारी चीजें जैसे जैसे हम ऐड करेंगे देखेंगे। लेकिन सिस्टम इंफॉर्मेशन देख सकते हो आप, जैसे मोड जो है इसका नेट मोड है। हमने नेट मोड में इसको डिप्लॉय कर रखा है, और भी मोड होते हैं इसको डिप्लॉय करने के। जैसे लेयर टू मोड या ट्रांसपेरेंट मोड होता है आपके सिस्को के फायरवॉल्स में, इसमें भी होता है अलग अलग मोड। उसकी बाद में बात करेंगे, आएगा आगे कॉन्सेप्ट, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब आएगा। अभी आई थिंक एक दो हफ्ते क्लास के बाद आएगा वो, तब उसी समय बताऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैन आईपी में अननोन लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ अननोन? क्योंकि हम इंटरनेट पे नहीं है हमारी ये चीज, हम लोकल लैब में अपने रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपका रियल टाइम, आपका खुद का कंपनी का अगर प्रोडक्शन होगा, उसमें यहाँ पे वैन आईपी दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अगर लाइसेंस्ड वर्जन अगर हम ही ले लेते हैं, तो हमें भी यहाँ पे एक आईपी दिखेगी। उस आईपी क्या बेनिफिट होगा? जैसे मैंने यहाँ पे आईपी एंटर किया 1.100, वो पब्लिक आईपी आप डाल करके इसी वाले बॉक्स का एक्सेस ले पाओगे। ठीक है, गुड। सेम टाइप जैसे अभी इधर हम ले रहे हैं लोकल आईपी डाल के, वैसे ही वहां पे आप वन आईपी डाल के भी एक्सेस ले सकते हो। ये लाइसेंस हैं आपके, कौन कौन से के लाइसेंस हैं, और ये लाइसेंस किस चीज का दिखा रहा है? आपके नेक्स्ट जेन फायरवॉल का दिखा रहा है। तो हमारे पास लाइसेंस है नहीं फिलहाल। ठीक है, नहीं तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होता। अभी देखो कैसे दिख रहा है, अजीब सा ही, नॉट सपोर्टेड नॉट सपोर्टेड, राइट? यहाँ पे सपोर्टेड दिखाता है। समझ में आ रहा है सबको? तो यस ये सर। लाइसेंस नहीं है, तो हमारे पास बेसिक लाइसेंस है। नेक्स्ट जेन फायरवॉल के जो फीचर्स होते हैं वो इनेबल्ड नहीं है। गुड। Yeah. फोर्टीगेट क्लाउड इट इज नॉट सपोर्टिंग। देखो, एडमिनिस्ट्रेटर कंसोल, HTTP 40 एक्सप्लोरर, ये सुपर एडमिन, एडमिन, ये वही हैं जो आपके यूजर्स हैं। कितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके बारे में डिटेल है ये। तो कंसोल से, HTTP से, 40 एक्सप्लोरर से, तीनों से एक्सेस। 40 एक्सप्लोरर यहाँ पे इनेबल नहीं है, कंसोल और HTTP इनेबल है। अभी हमने कैसे एक्सेस ले रखा है अपने डिवाइस का? एनीवन इज आस्किंग? बोलिए। कोई पूछ रहा था शायद, बीच में आवाज आई है। नहीं, ठीक है, गुड। 1 सेकेंड गाइस, ओके। हमने अभी कैसे एक्सेस लिया दोस्त? कंसोल से, HTTP से। अभी हमने HTTP से एक्सेस ले रखा है। वेब एक्सेस लिया हमने।
हाँ, सिक्योरिटी फैब्रिक में दिख रहा है। सिक्योरिटी फैब्रिक बोले तो क्या क्या सिक्योरिटी चीजों की आपके पास एक्सेस है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ फायरवॉल का एक्सेस है, ठीक है। एक पे सही दिख रहा है। अभी हमारे पास पोर्ट एनालाइजर नहीं है, पोर्ट एनालाइजर क्लाउड नहीं है, ये सब चीजें हम देखने वाले भी नहीं है वैसे। तो ये सब और भी सर्विसेज हैं जैसे फोर्टी स्विच। तो ये बोल रहा है सिक्योरिटी फैब्रिक के में इसमें और भी प्रोडक्ट होते हैं फोर्टी गेट के। जैसे फोर्टी स्विच होती है, फोर्टी मैनेजर होता है। फोर्टी मैनेजर किस चीज के काम आता है कि आपके पास कई सारे फोर्टी गेट के फायरवॉल हैं, आप उनको सेंट्रली मैनेज कर रहे हो एक ही डिवाइस से, तो फोर्टी मैनेजर होता है। अगर ये अटैच्ड होता फोर्टी मैनेजर से तो ये भी आपका सही दिख रहा होता, मतलब एक ग्रीन में ऐसे जैसे लिखा है ना इधर, वन वन करके ये दिख रहा होता है। हालांकि देखो यहाँ पे सिक्योरिटी फैब्रिक कनेक्शन आपका डिसेबल्ड है, ठीक है। फैब्रिक कनेक्टर एक भी नहीं लगा। फैब्रिक बोले तो क्या, ये जो आपका डिवाइस है इसके साथ में आपने कोई और टेक्नोलॉजी फोर्टीगेट की ही कनेक्ट कर रखी है क्या, ये उसके बारे में बता रहा है। हमारे पास सिर्फ फायरवॉल वन है। देखो ये देखो ध्यान से, ये सारी चीजें, सीरियल नंबर मॉडल हमारा यही वाला है केवीएम, और वर्जन है वर्जन 7.0.3, बिल्ड 0237, ऑपरेशन मोड है नेट, इतना ही। और ये सब सीपीयू वगैरह डिटेल्स है जो आपके डैशबोर्ड में दिख रहा है। और भी ऐड विजिट करके है, आप यहाँ पे क्लिक करके और भी चीजें ऐड कर सकते हो। जब टाइम आएगा तो हम एक एक चीज ऐड करके देखेंगे। जैसे डीएससीपी आपने इनेबल किया तो इसको ऐड कर लिया, डीएससीपी की डिटेल्स दिख रही है, कितने क्लाइंट को आईपी मिल गया यहाँ से। राउटिंग कर दिया तो राउटिंग टेबल दिखने लग गया मॉनिटर करने के लिए। एसडी वैन आपने डिप्लॉय किया तो एसडी वैन को मॉनिटर करने के लिए, है ना। आपने आईपी पूल यूटिलाइजेशन डीएससीपी के साथ साथ इसको भी कर लो। आपने वीपीएन कॉन्फ़िगर किया है तो आप आईपी से कर दो, वहां दिखेगा कितने आपके आईपी लग गए। आईपी एड्रेस मैनेजमेंट है, आईपैम है, हम करने वाले ही नहीं है इसको क्योंकि सिक्योरिटी फैब्रिक कोई हम ऐड नहीं करेंगे, वो सारी चीजें हैं। लाइसेंस का स्टेटस आपको देखना है, इसको क्लिक कर दो। ये सारी चीजें आपको अलग अलग तरह से दिखेंगी। आप अगर ऐड करना चाहो क्लिक करोगे इस पे ऐड हो जाएगा, इस वाली यही इसी एरिया में। किस एरिया में, इधर ही सेट हो जाएगा। सिस्टम इंफॉर्मेशन लाइसेंस डिफरेंट डिफरेंट इसमें जो दिख रहे हैं आपको ना सेक्शन, इन्हीं के अंदर वो ऐड होगा। तो हम आते हैं नेटवर्क पार्ट पे और कुछ पार्ट को अपने कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलो इंटरफेस पे क्लिक किया तो सबसे पहले देखो ये वाला इंटरफेस ऑलरेडी मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है। तो चलो क्लिक करते हैं और हम इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने से पहले क्या करेंगे, जोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त, जोन। जोन क्या होता है, इनसाइड किसी जोन को होता याद है, है? आउटसाइड जोन होता है। इंटरनल जोन मतलब इंटरनल यूजर्स के लिए होता है, एक्सटर्नल जोन हम यूजुअली यूज करते हैं करेक्ट, यस। जैसे सो आउट नेटिंग के लिए। जैसे मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अपने इनसाइड में रख रहा हूँ, इनको मैं आउटसाइड में रख दूंगा, और इन लोगों को मैं रख दूंगा अपने डीमिलिटराइज्ड जोन में, इनको भी डीमिलिटराइज्ड जोन में, चलेगा। तो अब होगा क्या, जैसे मान लो आपके पास एक और भी आ गया कोई, यहाँ पे एक कोई और डिवाइस आ गया जो डीएमजी में आ गया, कोई सर्वर आ गया, एक पोर्ट और कनेक्ट कर दिया मान लो आपने यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना रहेगा, कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं है। उस पोर्ट को लाओ और उस वाले जोन का पार्ट बना दो, और जितनी भी पॉलिसीज आपने अप्लाई कर रखी हैं उस जोन के बेस पे कर रखी हैं, तो उस जोन का जैसे ही पार्ट वाला भी पोर्ट बनेगा ऑटोमेटिक उस पे जो भी पॉलिसीज हैं अप्लाई हो जाएंगी। है ना बढ़िया चीज। तो जोन का मतलब है आप क्या कर रहे हो, अपने पोर्ट्स को क्या कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो। ग्रुप करके एक पर्टिकुलर एक जोन का मेंबर बना दे रहे हो, और आप जो अप्लाई करोगे सिक्योरिटी पॉलिसी वो कहाँ करोगे, उस जोन पे करोगे। नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल इंटरफेस पे भी जा करके नाम वगैरह दे दो, लेकिन जोन बनाने से बहुत अच्छे से आपका क्या हो जाता है, ग्रुपिंग ऑफ इंटरफेसेस हो जाता है। सिमिलर टाइप के इंटरफेस को मैंने एक जोन में डाल दिया, समझ आ रही बात। और अगर Yes, पॉलिसी sir. कोई अप्लाई करनी है तो मुझे जोन सेलेक्ट करना है, मुझे एक एक इंटरफेस पे नहीं जाना। जैसे अगर एग्जांपल इसका लें, डोंट वरी गाइज इफ डे वन इज नॉट गिविंग यू मच इंफॉर्मेशन, ओके, बट ये बहुत जरूरी चीज है समझना। तो अब पॉइंट यहाँ पे क्या है समझो, मान लो मेरा ये DMZ 3 है और DMZ 4 है, दोनों में जो भी सर्वर है उन पे सिमिलर टाइप की मैं पॉलिसी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ तो अलग अलग इंटरफेस पे बार बार पॉलिसी लगाओ, या तो फिर जैसे आपने बताया जोन बना के मैं एक पोर्ट प्लेस। 5 और हाँ पोर्ट 4 को एक ही जोन का पार्ट बना दूंगा, हम्म। और दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा, पॉलिसी अप्लाई कर दो, काम हो गया एक ही बार में, दोनों पोर्ट पे एक साथ अप्लाई हो यस। गया। हम्म, जबकि अलग अलग कनेक्टेड देखो एक हम्म। एक नॉर्थ एक साउथ, एक ईस्ट है एक वेस्ट है, सॉरी नॉर्थ साउथ नहीं, नॉर्थ साउथ तो ऊपर वाले और नीचे वाले को बोलते हैं, नॉर्थ है साउथ है, अंडरस्टूड। हम्म, सो इसीलिए जोन बनाना बहुत जरूरी है। चलो जोन बनाते हैं, जोन बनाया मैंने और नेम दे दिया क्या, आउटसाइड, ठीक है जी। इंटरफेस हम्म, का मेंबर कौन बनेगा, अब ध्यान से चल के देख लो किसको बनाना है।
किसको बनाए जी? आउटसाइड का बना दिया मैंने पोर्ट 3 को, चलेगा? पोर्ट 3 सिलेक्ट कर लो और कर दो क्या? ओके, डन। आप चाहते तो कमेंट भी कर सकते, देखो जोन यहां दिख रहा है नीचे, अब कौन है इसका पार्ट? पोर्ट 3। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा सबको? अगर आप चाहो तो इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कुछ आप जैसे डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, कमेंट की कनेक्टिंग या कनेक्टेड टू इंटरनेट लिख सकते हो, ओके कर दो। तो जब कभी भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन देखना होगा तो आप देखो, एटलीस्ट आपके जो एम्प्लॉयज होंगे आपके कंपनी में, उनको ये तो पता होगा ना भाई कि ये कहाँ जा रहा है ना? जैसे एडिट पे आएंगे, इंटरनेट से कनेक्टेड है। अच्छा, अब एक जोन और बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? इसको बना देते हैं इनसाइड, और इसको किसका मेंबर बना, पोर्ट 2 को इसका मेंबर बना दिया। पोर्ट 2 ही है ना? हाँ, पोर्ट 2 इनसाइड है, पोर्ट 2 को इनसाइड का मेंबर बना दिया, कनेक्टेड टू लैन। गुड, वेरी सिंपल गाइस। क्रिएट न्यू, फिर जोन, फिर आपने बना दिया डीएमजी, बस। और इसको, इनमें कौन कौन से पोर्ट ऐड कर दिए? पोर्ट 4 प्लस पे गए, पोर्ट 5, दोनों पोर्ट ऐड कर दिया। और क्या लिख दिया? डीएमजी, डीमिलिटराइज जोन, कनेक्टेड टू डीएमजी 3, डीएमजी 4। गुड, फॉलोइंग गाइस, आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। सो आपने Yes. इसको टोटल कर दिया काम। एक Yes. पोर्ट आपका और है, एक और बना दो जोन। क्या जोन का नाम लिखेंगे हम? मैनेजमेंट जोन। और इसको, इसका मेंबर किसको बना दें? देखो वो है ही वही खाली जो बचा हुआ है बेचारा, पोर्ट 1 बचा हुआ है फॉर कॉन्फ़िगरेशन, या आपके हिसाब से जो आप डालना चाहते हो। कोई दिक्कत नहीं आ रही? तो हमने जोन में सबको डिवाइड कर दिया। इसका काम अभी आएगा आने वाले समय पे। चलो एक एक इंटरफेस पे आईपी भी देते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आउटसाइड वाले पे जो आईपी यूज करेंगे, यहाँ पे हम आईपी यूज करते हैं अलग। यहाँ पे आईपी यूज कर लेते हैं 192.168 2 सीरीज की, ठीक है। और यहाँ पे आईपी यूज कर लेते हैं हम लोग 3, और यहाँ पे 4, सॉरी, हाँ ठीक है चलेगा। और यहाँ पे हम आईपी यूज कर लेते हैं कुछ अलग सी, और मैं बताता हूँ क्या। चलो करते हैं। तो फायरवॉल के सारे इंटरफेस पे 1.100 देंगे, चलेगा गाइस? फॉलोइंग विद मी। 1.100 यहाँ भी, यहाँ पे 1.100 था, सब पे हम 100 की आईपी देंगे इस पोर्ट पे। पोर्ट 3, पोर्ट 5, पोर्ट 4, पोर्ट 2 पे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पोर्ट नंबर 2 पे। पोर्ट नंबर 2 कौन है मेरा? इनसाइड है। तो सबसे पहले चलो एलियस लिखो। एलियस बोले तो नेम, इनसाइड किसी भी आरएफ का पार्ट नहीं है। रोल मैंने इसको बोल दिया लैन, चलेगा? ये बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड टेम्पलेट है गाइस, मैं अपने आप से नहीं बनाया मैंने कुछ इधर। तो इसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। किससे? अभी जो हम जोन बना रहे थे, नहीं, ये ऑलरेडी रोल है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा, सेटिंग विच डू नॉट अप्लाई टू द करेंट रोल विल बी हिडन। तो जैसे ही आप लाइन करोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स ओपन हो जाएंगे। देखो अभी ऐसे खुले हुए। अभी जैसे इसको वाइन करूंगा, देखो कुछ चेंजेस आ जाएंगी। कुछ चेंज आया, जैसे ये चीज आ गया इधर, बढ़ गया। ओ सॉरी, वाइन पे देखो अलग आ जाएगा कुछ चीज, लाइन पे कुछ चीजें गायब हो जा रही हैं। ठीक है, क्या एक्सेस देना चाहते हो भाई इस पे? मैंने बोला चलो पिंग कर दो इस पे, HTTPS कर दो, SSH कर दो, चलेगा इतना। ठीक है, इतना मैंने कर दिया अपने लाइन वाले पे। और आईपी दे देते हैं, लाइन है, मैं आईपी दूंगा 192.168.2.100 और /24। सबको समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो, Yes. 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 Yes, sir. क्लिक कर दो ओके पे। एक का आईपी दे दिया आपने। नाम क्या लिखा है इसका पोर्ट का? इनसाइड, राइट? देखो यहाँ इनसाइड हो गया। पोर्ट 1 को भी कर देते हैं, जो कि अपना मैनेजमेंट पोर्ट है। नाम यहाँ पे दे दो मैनेजमेंट। डिफाइंड में अनडिफाइंड रहने दो। यहाँ पे अनडिफाइंड का मतलब अनडिफाइंड ही है, कुछ नहीं है, हमें नहीं पता इसका किसी जोन का पार्ट है क्या है। लाइन वैन डीएमजी का तो पार्ट है नहीं, तो अनडिफाइंड रहने दो। आईपी ऑलरेडी है यहाँ पे। कई बार डीएचसीपी सिलेक्ट रहता है, आकर के मैनुअल कर लिया करो। यहाँ पे मैनुअल बोले तो स्टैटिक यहाँ पे। एक्सेस देखो HTTPS HTTP देखो यहाँ पे है, लेकिन अगर ये आपने दोगे नहीं ना उधर से अंदर से
CLI से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ दिखेगा नहीं, Yes. ये इनेबल करा था आपने वहां से, पिंग भी इनेबल कर दो, सो दैट फ्रॉम आउटसाइड वी कैन पिंग देम, और सिंपली क्या कर दो, ओके कर दो। करा, यू आर करेंटली कनेक्टेड ऑन दिस इंटरफेस, जाहिर सी बात है गुई तो उसी से कनेक्टेड है ना गाइस। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कौन सा आईपी चेंज कर दिया है। पोर्ट नंबर 3 कौन सी है, आपने स्नैपशॉट लिया सबने ना, Outside. तो आप अभी हेल्प करना मुझे, ठीक है। पोर्ट नंबर Yes. 3 है अपना, 2 बार क्लिक करोगे Outside. तब भी खुल जाएगा सेम चीज ही, लेकिन मैं क्या कर मैं एडिट पे जा रहा था बार बार। यहाँ पे लिख दो पोर्ट नंबर 3 आउटसाइड, राइट, या यू कैन से हम्म। वैन, या लिख दो आउटसाइड, ज्यादा समझ में आएगा ना, इनसाइड आउटसाइड ज्यादा समझ में आता। और यहाँ पे आकर के क्या कर दिया आपने, वैन। वैन कर दिया। बैंडविड्थ भी सेट कर सकते हो, देखो इतना अच्छा है यार ये। आप किसी और कंपनी का अगर लेके आओगे फायरवॉल, बैंडविड्थ के लिए अलग चीजें, अलग जगह होती है जाने के लिए, अलग फैब्रिक, अलग अलग सेक्शन होता है, देखो एक ही चीज में दे दिया सब इसने। अच्छा बैंडविड्थ चेक चेक करना चाहते हो, अच्छा ऐप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अपलोडिंग ये डाउनलोडिंग सर स्पीड करना चाहते हो, हैं? लैन में ऑप्शन नहीं देता क्या, वो जब लैन के लिए हम नहीं सिलेक्ट लैन करते में तो LAN नहीं देता, क्योंकि लैन में तो आप लोकल एरिया नेटवर्क में हो, कई और चीजों से आप उसको मैनेज कर सकते हो। हम्म। ये है वैन के लिए। वैन के लिए देता भी क्यों है, किसी को आइडिया है क्या, वैन के लिए क्यों दे रहा है बाय डिफॉल्ट? इंटरनेट से कनेक्टिविटी है ना फिर क्लाइंट की, मतलब जैसे अपने उसके वैन पे लिए। इसलिए दे रहा है दोस्त, समझो, मान लो आपकी यहाँ पे 10 गिग की लगी हुई है लिंक, कितनी, 10 गिग, और आगे जो आपका ISP है वो कह रहा है भाई 1 गिग का ही मेरे पास आगे लिंक है, तो आप मैच करोगे कि नहीं मैच करोगे उसके वाले स्पीड से? यस। तो आपको इसलिए देने का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, लेकिन इंटरनली तो यू नो ना, आप क्यों लेके आओगे अच्छा। फालतू की केबल, आप केबल ले हम्म लाओगे ही नहीं ना ज्यादा स्पीड वाली, अगर आपको पता भाई मेरे 10 गिग है, 10 गिग लाओगे। लेकिन वैन में तो ओके। आपको नहीं पता, आपका ISP, मान लो ISP ने बोला भाई मेरा इंफ्रा चेंज हो गया, आपके एरिया में 10 गिग की लग गई, अब आपने 10 गिग की लगा रखी हाई बैंडविड्थ, उसने जैसे बोला 10 गिग हो गया, आपने क्या किया जाके, बढ़ा दिया बैंडविड्थ, गुड। ओके। हम्म। हम्म। तो आगे चलते हैं जी, मैनुअल में हम यहाँ IP देंगे 192 और .1.12.100, चलेगा? याद रखना थोड़ा अलग है IP, सर ये क्योंकि ये बैंडविड्थ मैच बढ़ेगा कराना जरूरी है, एक्सक्यूज मी सर, जी। ये आईएसपी से बैंडविड्थ मैच कराना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है जावेद अगर सर। हमारे पास जो पोर्ट है वो तो 10 गिग का है और आईएसपी के पास 1 गिग का है, तो हमको स्पीड हम्म 1 गिग की ही मिलेगी मैक्सिमम। मिलेगी तो, मैच लेकिन करना मान लो अगर जरूरी है। आपने ज्यादा डेटा भेजा फिर, हाँ, ज्यादा डेटा भेजा तो चोक होगा। तो हाँ इसीलिए तो मैं कराते हैं। आपने अगर कंपनी देखा होगा, आप अगर आप कंपनी में काम करते हैं भी किसी, जी। आप पता करो, अगर आप ही देखते होगे तो आप खुद कराते होगे उसको मेंटेन, है ना? मैच कराना जरूरी है। नहीं करवाते, करवाते हो ना? क्यों करवाते हैं हम, समझो, देखो जब जैसे मान लो चलो राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं दोनों के बीच में, हम्म। आपने VPN बना रखा है, हम्म। ठीक है, या कोई ऐसा प्रोटोकॉल रन कर दिया जो कि बैंडविड्थ का यूज करता है, जिसका कैलकुलेशन बैंडविड्थ के बीच पे होता है, के बेस पे होता है, फिर अब बैंडविड्थ अगर आपके यहाँ पे अलग है तो उसके हिसाब से अलग कैलकुलेशन करेगा वो, और दूसरे एंड पे अलग है, वहां पे अलग कैलकुलेशन होगा, मिसमैच भी होता है। लेकिन जब ठीक कभी ठीक। भी इस तरह का चीज होता है ना, बात समझो, तो हमेशा हम्म। बैंडविड्थ आपको बताता है आपका ISP, और उस हिसाब से आप मैच करते बताता है। हो। क्योंकि जब मैच करोगे तो आपके जो प्रोडक्शन इंजीनियर उनको भी पता रहेगा भाई कैसे मुझे कॉन्फ़िगर करना है इधर। पता लगा बैंडविड्थ आगे कम मिल रही है, यहाँ से आप ज्यादा भेज रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ड्रॉपेज आएगा, ड्रॉप होगा आपका ट्रैफिक, और ड्रॉप होना अलाउड है नहीं, हमारा काम है ड्रॉप ना करवाना, ठीक है। ठीक है। 192.1.12.100, यहाँ पे चलो मैंने पिंग अलाउ कर दिया, बस पिंग इज एनफ। भाई HTTP नहीं देना चाहते हम किसी बंदे को, क्लिक ऑन ओके। नाम क्या लिखा है इसका, आउटसाइड, ओके। अब चलते हैं पोर्ट नंबर 4 पे। पोर्ट नंबर 4 क्या है, इमेज देखिए एक बार प्लीज, जिन्होंने लिया था स्क्रीनशॉट, और जिन्होंने नहीं लिया था बैड थिंग गाइस, लेना चाहिए था। क्या है पोर्ट बताओ? 4 की बात कर रहे हो आप? हाँ पोर्ट 4, DMZ वाला है वो। DMZ DMZ 3 है। 4 है पोर्ट 4। DMZ 4 है।
ओके, मतलब आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ। चलो यहाँ पे आईपी देते हैं 192.168.4.100, 4 से कनेक्टेड है ना, 4.100। हम्म। यहाँ पे मैंने पिंग भी अलाउ कर दिया, चलो HTTPS भी कर दिया, SSH कर दिया, मेरा बंदा भाई अपना कर लिया। ओके, अब और चलते हैं पोर्ट नंबर 5 पे। बहुत ही स्लो जा रहा हूँ गाइज, किसी को अगर दिक्कत है तेज पढ़ाना है तो बताओ, फटाफट कर दूंगा मैं तेज स्पीड। DMZ, यहाँ पे 3 है ना। हाँ पोर्ट, हाँ DMZ 3 है। डन, इसका पार्ट हो गया डन। ओके, अब चलो करते हैं अपने किस पे कॉन्फ़िगरेशन दोस्त। तो ये जो नोट्स है ना, ये मैं आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि ये टाइम ले रहा है, अभी हमारे पास टाइम कम बचा है। फर्स्ट डे है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं एज अ क्वेश्चन। तो अब क्या करने वाले हैं हम, नेटवर्क के बाद चलो DNS सेट कर दो अपना। क्या सेट कर दो, DNS। ध्यान से देखो, रीचेबल है कहीं अभी ये DNS, इसका खुद का है फ्री वाला, मतलब अपना 40 का। स्पेसिफाई भी कर सकते हो, नहीं तो इससे भी काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, क्या है वो चीज, ये अभी इंटरनेट पे नहीं जा पा रहे हैं भाई साहब, ये इंटरनेट पे अभी नहीं जा पा रहे। तो इंटरनेट पे इनको जाने के लिए आपको राउटिंग करनी पड़ेगी। करें, यस। इनको बोलना पड़ेगा भाई कि आपको अगर किसी भी ट्रैफिक के लिए जाना है तो किधर से निकलो, आपका गेटवे, इनका गेटवे कौन होगा। फोर्टीनेट। तो कहाँ से करेंगे उसकी राउटिंग, पॉलिसी एंड इसी से ऑब्जेक्ट्स। कर देंगे। कहाँ पे, चलो दिखाता हूँ, ये स्टैटिक नेटवर्क। राउट करके दिख रहा है, ये वाला सेक्शन। हम्म। यहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट न्यू। ये है डिफॉल्ट राउटिंग का हिसाब किताब, यहाँ पे डाल दिया मैंने 192.168.1.2। और ये कौन है भाई 1.2, देखो मैनेजमेंट पोर्ट अपने आप इसने ले लिया। 1.2 मेरा BM net 8 का जो अडेप्टर है ना, उसका क्या है, उसका IP है ये। आगे उसी ने इंटरनेट से कनेक्टिविटी मुझे देनी है। तो ये मैंने अपने गेटवे की IP दे दी है, आप अपने इंटरनेट की IP दे दिया, या आपके कंपनी में जो भी लगा था ब्रॉडबैंड, उसकी IP दे दी आपने, चलेगा। अब अगर DNS पे जाओगे तो देखो, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं अप्लाई करूं अनरीचेबल, देखो कुछ दिखा रहा है, अभी तो दिखा रहा है कुछ मिली सेकेंड, पहले अनरीचेबल था। अब चलो काम करते हैं, 888 कर देते हैं। ये वही वाला है जी गूगल का, और ये है क्लाउड करके। इफ दे आर रीचिंग और नॉट, रीच तो कर रहा है जी, कर रहा है, चलो ठीक है। अब अगर मैं अपने इसी 14 से गूगल पे जाना चाहूं, जा पाऊंगा क्या, करके देखें। ये देखो लॉग आउट हो जा रहा है बार बार, है ना। इसको भी चेंज कर सकते हो, कहाँ से चेंज करेंगे इसको, सिस्टम के अंदर जाओ, और कहाँ जाओ फिर, सेटिंग में जाओ, यहां से चेंज कर सकते हो। और ये भी देखो एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग है। HTTP अगर आपको लेना है तो पोर्ट नंबर 80 पे लोगे या किसी और पोर्ट पे लोगे, आप ये भी चेंज कर सकते हो। अगर ये चेंज कर दिया, तभी हम कौन से पोर्ट पे ले रहे हैं अपना इसका एक्सेस, HTTP के पोर्ट नंबर 80 पे। अगर इसको चेंज करके 81 कर दिया तो 81 डालना पड़ेगा बाद में पोर्ट नंबर, नहीं तो आप ले नहीं पाओगे एक्सेस। Ideal आइडल time out. टाइम, हाँ जी, Yes, sir. Ideal time out. That's 30 seconds or 60 seconds. हाँ, आइडल टाइम आउट 5 सेकेंड है, तो कितना कर दिया जाए जी, 30 or 60. मिनट में कर देते हैं, 300 सेकेंड कर दें, ठीक Okay. है चलो सही रहेगा। और यहाँ से आप अपना व्यू सेटिंग वगैरह चेंज, थीम चेंज करना है, थीम चेंज, देखो थीम चेंज हो गया ना, कर दो ग्रेफाइट कर दो रेट्रो, अच्छा लग रहा है, डार्क, ये और अच्छा लग रहा है। तो ये एक अलग तरह के हैं, आप अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, जापानीज, फ्रेंच, ये सब चीजें हैं। हिंदी तो ही नहीं भाई इसमें, कैसे करा जाए, अभी हिंदी नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। और 40 गेट टाइम जोन खुद ले रहा है, ब्राउज टाइम जोन कर सकते हो आप टाइम जोन को
ब्राउज भी कर सकते, देखो अभी लिख ही नहीं रहा है, ब्राउजर आएगा, सर्च हो रहा है कुछ, तो हम कुछ नहीं कर रहे फिलहाल, इस पे छोड़ दो। नेक्स्ट जेन फायरवॉल का मोड अभी प्रोफाइल बेस्ड है, पॉलिसी बेस्ड है, आगे बताऊंगा इन दोनों का मतलब क्या होता है। सेंट्रल लेस नेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नेट का ही एक टाइप है जो कि FortiGate सपोर्ट करता है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अभी हम प्रोफाइल बेस्ड है, पॉलिसी बेस्ड नेट को यूज कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट आएगा आगे। तो अभी तो इतना हम कर रहे हैं, हमें अप्लाई कर देते हैं उसके बाद। योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। तो यानी कि अभी टाइम आउट नहीं होगा बार बार जो हो जा रहा था। तो हम क्या करने वाले हैं यहां से जी, हम पिंग करने वाले हैं किसको, गूगल को, करें। लेट्स सी इफ इट इज गोइंग ऑन गूगल और नॉट, लेट्स सी। नहीं यार। और तो कह रहा है मैंने रिजॉल्व ही नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, हम्म। मत कर पाओ भाई। एग्जीक्यूट पिंग 8.8.8 को कर पा रहा है ना ये, अरे इसको ये तो इसको भी नहीं कर पा रहा है भाई, Sir, क्या without दिक्कत है। license, so can't access the Google. हाँ जी, लाइसेंस नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, ओके। नहीं चाहिए। राउट दे दिया ना भाई हमने। कुछ तो इशू है, चलो देखते हैं फिर से कहाँ इशू है जी। अगर मैं चलूं डैशबोर्ड पे, स्टेटस पे, यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है क्या, नेटवर्क में मैं चलूं। सर शायद डीएनएस लिया नहीं था उसने, आप डीएनएस देखो एक बारी। देखते हैं रुको। क्योंकि अप्लाई पे ना, अप्लाई पे बस वो अप्लाई की स्क्रीन वैसे ही रख दिया था उसने, उस टाइम पे शायद लॉग आउट हो गया था। लिए, अच्छा। हाँ मुझको ऐसा गेटवे लग वन रहा डॉट है। टू है, डिस्टेंस सिस्टम बाय डिफॉल्ट स्टैटिक, सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएनएस। यहाँ से पिंग करें, डीएनएस देखना है, देख लेते हैं। डीएनएस दे दिया था मैंने, नहीं सेव किया था क्या। वो शायद अप्लाई पे ही रखा हुआ था इसलिए अच्छा ले अनरीचेबल। नहीं। नहीं, अप्लाई का मतलब ही है वही, ले लिया है उसने। ठीक है। सबसे पहले तो रुको मैं खुद पिंग करके देखूं कि ये मैं गेटवे ही पिंग कर पा रहा हूँ। गेटवे ही नहीं पिंग कर पा रहा हूँ तो कहाँ से होगा काम भाई। गेटवे कौन है मेरा, ओ वन है, सॉरी गाइस माय बैड। वन को करना है भाई, गेटवे किसको लगाना है राउटिंग में, वन को ना। गलत जगह जा रहा है भाई रिक्वेस्ट लेके, वो बंदा ही नहीं एग्जिस्ट करता दुनिया में। ओके, अब राउटिंग काम करे करनी चाहिए। तो अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूं यहाँ से, एग्जीक्यूट पिंग 8.8.8 जा रहा है, यानी काम हो गया। अब अगर आप डीएनएस पे भी जाके देखोगे ना, देखो गाइज ये CLI यहाँ पे भी है, जो यहाँ से ओपन कर रहा हूँ ना नीचे जाके, वो CLI यहाँ पे भी है। CLI कंसोल है ना, है लिटरली बहुत अच्छा है यार। फोर्टिनेट CLI का भी एक्सेस नहीं दे रहा है, ये यही नहीं देता, और भी देती हैं कंपनियां। वो भी CLI एक्सेस आपको GUI के अंदर ही दे देती हैं, कोई बात नहीं। ये तो वैसे ही नाम करने के लिए बोल रहा हूँ इसको। डीएनएस का देखो अब आ रहा है ना 10 मिली सेकेंड इन ग्रीन, वाओ, गुड, गाइस गेटिंग इट। Bro, yeah, in command prompt, we need to give the Google IP address or Google domain name. If we give IP address, only it will come or no. आंसर Oh, इज ऑन योर स्क्रीन। yeah. अब तो क्यों नहीं देना हमें, क्योंकि डीएनएस तो रिजॉल्व हो रहा है ना यहाँ से, ये रिजॉल्व कर दे रहा है उसको, उसको आईपी में कन्वर्ट ही कर दे रहा है। तो ये तो बेसिक था, क्यों किया इसको, अभी जरूरत पड़ेगी ना। मैं मेरा FortiGate फायरवॉल तो पहले पहुंचे इंटरनेट तक, तभी तो मेरे अंदर के डिवाइसेज को पहुंचाएगा, राइट। तो चलो अब डिवाइसेज की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका तो काम हमारा हो गया, FortiGate फायरवॉल हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब चलो करते हैं R3 R1 इस पे कॉन्फ़िगरेशन। चलो R1 का एक्सेस लिया मैंने, नो, लेट इट कम अप। R2 का एक्सेस ले लो जी। इसको भी नो कर दिया जी। R3 का एक्सेस ले लो, रेडी कर रहा हूं मामला। R4 का भी एक्सेस ले लिया जाए जी, ठीक है। अब सबका एक्सेस ले चुके हैं ऑलमोस्ट, यस। सो इसको काम करता हूँ, छोटू कर देता हूँ तो यहाँ सही से दिखेगा।
आजा भाई कनेक्ट कर फटाफट चल। R4 कौन सा है भाई? ये है R4 पे किसी को याद है क्या आईपी दी थी? ये फोर डॉट DMG हंड्रेड 4 था, उस पे हमने दिया था 4.100 ना। हम्म क्वांटिटी इंटरफेस E0/0, E0/0 इसका इंटरफेस है भाई यहाँ। गाइस एनीवन हियर हु डजंट नो हाउ टू डू कॉन्फ़िगर इंटरफेसेज एंड अदर थिंग्स? कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे? हेलो, जावेद, अनुज, शुभम, अभिराम, शिवम, किशोर, guys, you guys are aware about this, right? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. yes. Noshat IP address 192.168 4 dot. This is 4. I'm giving 4. 255.255.255.0. Just IP, okay? Nothing else. और साथ में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? लाइन कंसोल 0, नो एग्जिट टाइम आउट, बार बार लॉग आउट नहीं होना चाहिए। और क्या कर दिया? लॉगिंग सिंक कर दिया, सो दैट मैं कमांड टाइप कर रहा हूं तो कोई अगर मैसेज आए तो मेरा कमांड सिंक में ही रहे, ना कि वो मैसेज के आगे लिखने लग जाए। आप लोग अपने फेस किया होगा अगर आप सिस्को का वो चलाते होगे राउटर वगैरह तो ये रहता है। और एक चीज और, लाइन BTY04, और यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया मैंने सिस्को करके, और क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट इनपुट, सॉरी टेलनेट कर दिया। इन फ्यूचर अगर हमें टेलनेट वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है उस चीज के लिए, ठीक है दोस्त, चलेगा? तो क्या कमांड चलाया मैंने R4 पे? लाइन कंसोल 0, नो एग्जिट टाइम आउट, लॉगिंग सिंक, सिंक्रोनस एक ही चीज है। और मैंने इंटरफेस E0/0 पे गया और यहाँ पे लिखा नो शट, IP एड्रेस दिया 192.168.4.4 255.255.255.0, चलेगा? और मैं गया यहाँ पे लाइन BTY04, या 0 भी लिख दो, एक BTY आपको देगा, इसे मैंने 5 अलाउ कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड दे दिया, सो दैट लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मांगे सिस्को, और साथ में मैंने कर दिया ट्रांसपोर्ट। बाय डिफॉल्ट हो सकता है पुराना सिस्को का iOS है तो इसमें हो सकता है आपको ट्रांसपोर्ट इनपुट नन दिखाए, इसलिए मैंने यहाँ पे टेलनेट कर दिया। दैट्स इट। और एक चीज क्या करना है मुझे, एक डिफॉल्ट राउटिंग करनी है, सो दैट एनी ट्रैफिक इज ट्राइंग टू गो ऑन डिफरेंट नेटवर्क या किसी भी नेटवर्क पे, तो किसके पास जाए वो? मेरे FortiGate फायरवॉल के पास जाए, क्योंकि उसको हमने यहाँ पे गेट पे बना रखा। चलेगा दोस्त, सबको समझ में आ रहा है? और ऐसा ही मैं R3 पे करने वाला हूँ, सेम चीज कॉपी पेस्ट मार दो भाई और IP चेंज कर दो। ठीक है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे कर देंगे हम 3.3, चलेगा? बस इस पे और क्या करना है? होस्ट नेम वगैरह मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट एक्सेस ले लेंगे ऊपर से। और R1 पे क्या करेंगे जी? R1 कौन है? मेरा इनसाइड है ना? इस पे भी करो। R1 पे IP है 2.2 कर देता हूँ, बाकी सब चीजें सेम है। हाँ जी, सॉरी, हाँ सही है। यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे करना चाहिए 3 गेटवे अगर R3 है, यहाँ पे करना चाहिए 1, ओ सॉरी 2, सर कहीं पे क्योंकि आपने 2 है। 12 भी दिया था ना? कहाँ पे? कहीं पे हाँ दिया 12 था भी दिया था आपने। R2 पे, R2 पे दिया था 192.1.12.100 दिया था। यहाँ पे मैं कर दूंगा 12.2, सॉरी गाइज, यहाँ पे मुझे करना है 2.1, है ना? ठीक है, ये 12.2 है, वहां पे मैंने क्या दिया? अब देखो यहाँ पे आपको क्या डिफॉल्ट राउट देना चाहिए, स्टैटिक राउट देना चाहिए? आउटसाइड है तो मुझे कैसा राउट देना चाहिए भाई? आपका ISP आपके कंपनी के लिए कैसा राउट देता है? डिफॉल्ट राउट देता है या स्टैटिक राउट देता है? डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट क्यों देगा? तो सारी दुनिया का ट्रैफिक आपके ही कंपनी में आ जाएगी।
स्टैटिक राउट देता है। क्या देता है? स्टैटिक राउट देता है ना आपके नेटवर्क के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तो चलने वाला ही नहीं है। लेकिन चलो हम यहाँ पे नेटवर्क में नहीं है उस वाले, तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पे, डिफॉल्ट ही रहने दो। लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आप, ठीक है, इस वजह से मैंने ये चीज पूछा। तो चलो हर राउटर पे चलते हैं। एक राउटर पे तो कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, इस वाले पे चलो R3 पे चलते हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। लेगा क्या है कॉपी करके पेस्ट? मुझे नहीं लगता लेगा डायरेक्ट। तो चलो चलते हैं, कुछ जुगाड़ लगाएंगे। ये रहा भाई हमारा, नहीं लेगा कॉपी पेस्ट। है ना? तो क्या किया क्लिपबोर्ड जाए, ओपन नहीं ले रहा है करो तो? ना आप उसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और क्लिपबोर्ड ओपन करके। मैंने किसके लिए कॉपी करा है भाई अभी इधर से? R3 के लिए। ठीक है, R3 पे आओ। लो भाई फटाफट करो, R3 पे आ जाए हम। ओके, क्लिपबोर्ड में इसके पेस्ट कर देंगे तब तो लेगा ना भाई। हम्म। ठीक है, अभी भी नहीं ले रहा क्या? ले ली। लेता है। ठीक है, गुड। मैंने राइट क्लिक किया, फिर उसके बाद भाई वहां पेस्ट करने के बाद क्या बटन दबाया? मैं मैकबुक पे हूं तो मैंने कंट्रोल ऑप्शन और शिफ्ट दबाया। आप में कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट होगा वाले में, ठीक है। विंडोज डिवाइस में कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। नहीं तो आपके अगर लैपटॉप में क्या है, क्या बोलते हैं भाई उसको, सिक्योर CRT वगैरह, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉपी पेस्ट मारो टकाटक, ये तो कांस्टेंट है मैकबुक में। हालांकि इसमें भी इंस्टॉल हो सकता है, समय लगेगा थोड़ा करने में, वो मैं करना नहीं चाहता। चलो एक पे कर दिया, R3 का हो गया जी। अब किसका करना है? R2 और R1 कर देते हैं, R4 का पहले ही हो रखा था। चलो लेके आते हैं वहां से हम उठा के R1 का, और R2 का। R1 का है R1 करना है ना। इसके तो क्लिपबोर्ड में डाला ही नहीं हमने। R1 है, यस, ठीक है। ठीक है गाइस, हेलो। हम्म। गुड, अब R2 पे चलो। गलत पेस्ट कर रखा था भाई, सीन हो जाएगा यहाँ। R2 आउटसाइड है 12.2। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, ये कि यहाँ पे IP क्या थी इस वाले पे। कैसे देखेंगे? CLI से भी देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गए भाई। शो सिस्टम इंटरफेस, क्या IP दे रखा है हमने उस पे? ओह ठीक है, 12.100 दे रखा, चलेगा। हाँ, अब क्या करना है, मैं अपने फायरवॉल पे जा रहा हूँ, ठीक है, CLI ऑन करता हूँ और पिंग करके देखता हूँ सबको। पिंग करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट पिंग नहीं काम करता है, एग्जीक्यूट करके करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट पिंग 192.168.2.1। पिंग कर पा रहा हूँ, मतलब मैं रीचेबल हूँ अपने इनसाइड नेटवर्क के पास। 3.3 पिंग कर पा रहा हूँ, दैट इज गुड। 4.4 पिंग कर पा रहा हूँ, दैट इज अगेन गुड। और मैं पिंग कर पा रहा हूँ अपने 1.12.2 को, मतलब हर कोई के पास मैं रीचेबल हूँ। मतलब क्या है इसका? ये सब आपस में रीचेबल है, ठीक है। ये सब ऐसे नहीं है, ये ये सब इस फायरवॉल से रीचेबल है। अगर मैं R3 को R4 के साथ में बात करवाना चाहूंगा तो नहीं करवा पाऊंगा अभी। क्यों? क्योंकि बीच में ये भाई साहब हैं,
और बाय डिफॉल्ट कोई भी पॉलिसी अलाउड, कोई भी ट्रैफिक अलाउड नहीं है थ्रू ट्रैफिक जिसे बोलते हो। थ्रू का मतलब आपके फायरवॉल से हो करके जो गुजर रही है। तो उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, पहले करके देखते हैं क्यों नहीं जा रही है। तो अगर मैं जाऊं अपने किसी किस पे, किसी एक राउटर पे, चलो मैं R1 से R4 को पिंग करता हूं, ठीक है। देखते हैं पहले जाता है कि नहीं जाता है। तो R1 के पास मेरे आईपी जो भी है, मैं पिंग कर रहा हूँ 192.168.4.4 को, चलेगा? पिंग हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है गाइस? एनी वन हैव आइडिया? ये यहां से यहां जाना चाहता है, बीच में ये भाई साहब है, और इनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इनको जाने दो। क्यों नहीं है इंस्ट्रक्शन? चलो देखो। अब अगर आप जाओगे फायरवॉल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर, जो पॉलिसी जहां पे अलाउ करती है या डिनाई करती है, और फायरवॉल पॉलिसी फायरवॉल पे आओगे, पॉलिसी तो आपको एक चीज दिखेगी। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे पढ़ो, डिनाई इम्प्लिसिट डिनाई डिनाई। इसको ओपन करो। क्या बोल रहा है? कह रहा है इनकमिंग इंटरफेस एनी, आउटगोइंग इंटरफेस एनी, कहीं से कहीं की भी ट्रैफिक, किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन की ट्रैफिक क्या है? डिनाई डिनाइड है। अगर इसको आपने यहां सेलेक्ट करके ओके कर दिया ना, लॉग भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने देखो लॉग को इनेबल कर दिया, अभी लॉग दिखाता हूं आपको। फिर से करते हैं पिंग चल के, लो फिर से करा। अभी पिंग तो नहीं हो रहा, लेकिन लॉग बन रहा होगा वहां पे। कहां से देखेंगे लॉग? यहाँ पे एक सेक्शन है, कहाँ गया भाई वो सेक्शन? ये लॉग एंड रिपोर्ट लास्ट में। फॉरवर्ड ट्रैफिक पे आओ, देखो दिख रहा है कि भाई 192.168.2.1 करके एक भाई है, वो इस वाले डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहा है, मैंने उसको डिनाई कर दिया है। तो 192.168.2.1 लेके आ रहा होगा आपका इनसाइड वाला राउटर, है ना? और जा किस पे रहा है? 4.4 पे। भाई मैंने इसे डिनाई कर दिया, ये डिनाइड होता है बाय डिफॉल्ट। तो एनी ट्रैफिक गोइंग थ्रू योर फायरवॉल बाय डिफॉल्ट दे आर डिनाइड। ठीक है जी। इम्प्लिसिट का मतलब बाय डिफॉल्ट। तो हमें अगर चाहते हैं हमें अलाउ करें इन लोगों को, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको? बताओ एक्सेस दोस्त। फायरवॉल पॉलिसी पे अलाउ करना पड़ेगा। उसको जाके अलाउ करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। करें? हेलो हेलो। यस यस सर। ये करके हम फिनिश कर देंगे आज के क्लास, ओके। तो चलो करते हैं नेटिंग। अगर कहोगे देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, देख सकते हैं नेटिंग, कोई इशू वाली बात नहीं। चलो नेटिंग देख लेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको पिंग करना चाहूं यहां से R1 से R2 को, तो कर पाऊंगा क्या? नहीं नहीं, नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे कैसे मान लूं? पिंग करके देखो ना। वन नाइनटी नहीं टू डॉट वन डॉट ट्वेल्व डॉट टू है ना उसकी आईपी। पिंग कर पा रहा हूं क्या? नहीं कर नहीं पा रहा हूं। तो यानी कि कुछ तो सीन है। चलो एक काम करते हैं जी, पॉलिसी अलाउ करते हैं। कहाँ से जाएंगे पॉलिसी के लिए? नेटवर्क में नहीं जाना, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में आओ, फायरवॉल पॉलिसी में आओ, यही वाले पे जो ये दिखा रहा था, और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। देखो नेम मैंने डाल दिया इनसाइड अलाउ इनसाइड टू आउटसाइड। मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, एक ही साथ में दो कॉन्सेप्ट आपको दिखा दूंगा आज के लिए फिलहाल। इनकमिंग इंटरफेस, अगर मैं इनसाइड से आउटसाइड जाना चाहता हूं, तो कौन सा इनकमिंग इंटरफेस होगा मेरा? इनसाइड इनसाइड। ध्यान से देखो, इनसाइड जोन है ये। यहाँ पे हम्म इंटरफेस नहीं दिख रहा है, जोन दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूँ हम्म भाई इनसाइड से अगर मैं आउटसाइड जाऊं, दिख रहा है ना, यही अच्छा होता है जोन करने से। देखो ध्यान से देखो, राइट साइड मेंबर भी दिख रहे हैं इस जोन के। आउटसाइड जाना चाहूं, सोर्स मैं क्या लेके आऊं जी? क्या सोर्स है मेरे पास? अभी तो मैं ऑल ले रहा हूं, लेकिन हम इसको मोर स्पेसिफिक होकर के करेंगे आगे, कल, सॉरी कल नहीं, जो नेक्स्ट क्लास होगा। बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, सारे यूजर्स को हम नहीं जाने देते। लेकिन अभी मैं एनी को जाने दे रहा हूं, दिख रहा है यहाँ पे, हम्म मैंने ऑल कर दिया। डेस्टिनेशन भी मैंने क्या कर दिया? ऑल कर दिया, कि भाई इनसाइड से आउटसाइड कोई भी नेटवर्क जा पाए, इनसाइड से आउटसाइड जा पाए, ये मैंने बोला। ये मैंने एक बार भी नहीं बोला आउटसाइड से इनसाइड आ पाए, नहीं। तो अंदर का बंदा बाहर जा पाएगा और वापस आ पाएगा, लेकिन बाहर का बंदा अंदर नहीं आ पाएगा अभी भी। क्या बोलना चाह रहा हम्म हूं? मैं ट्रैफिक इस दिशा में कर रहा हूं अलाउ, तो ये भाई अगर जाएगा तो वापस आ जाएगा, क्योंकि ये जब जाएगा तो इस चेक करेगा पॉलिसी, कहेगा हो अच्छा यू आर अलाउड मैन, गो गो।
और जैसे ही आएगा वापस तो इसने लॉग भी क्रिएट किया रहे होगा, जिसे बोलते हैं कनेक्शन टेबल में एंट्री। तो जो कनेक्शन बना उसके इसके टेबल में एंट्री हो जाएगा। जब ये वापस आएगा तो उसको अलाउ करेगा उस कनेक्शन टेबल को देख करके। लेकिन अगर ये आना चाहे तो पहली बात तो यहीं आकर के पॉलिसी चेक हो जाएगी, पता लगेगा भाई तुम तो अलाउड ही नहीं हो जाना, कहीं जा रहे हो अंदर, तो ये तो यहीं ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन इसमें दो चीज निकल के आती है, ट्रैफिक इनिशिएट कहाँ से हो रही है। अगर ट्रैफिक इनसाइड से इनिशिएट हो रही है और आउटसाइड जा रही है तो आने के लिए अलाउड है वो। लेकिन अगर ट्रैफिक आउटसाइड से जा रही, आउटसाइड से इनिशिएट होकर के इनसाइड आना चाहती है तो पॉलिसी चाहिए आपको। तो एनी वन इज अलाउड टू गो आउटसाइड विल बी ऑटोमेटिकली अलाउड टू कम इनसाइड। कुछ सर्टेन रूल्स के लिए बात कर रहे हैं, अभी के लिए बात कर रहा हूं। अभी ये भाई साहब अगर बाहर जाएंगे, यही अगर आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई ये बात? यस। यस सर। तो चलो, सर्विस में मैं सिर्फ आईसीएमपी को अलाउ कर रहा हूं, ऑल आईसीएमपी। ठीक, नेटिंग भी कर दिया जी। नेटिंग बोले तो बाय डिफॉल्ट आईपी क्या हो जाएगी, इनसाइड की पब्लिक। पब्लिक में चेंज हो जाएगी। ओके, कर दिया। अब अगर मैं पिंग करना चाहूं तो यहाँ पे लॉग को थोड़ा सा कर दो बड़ा, इसको कर दो ऑल, अप्लाई कर दो, लॉग दिखना चाहिए मेरे को। ठीक है जी, चलो अब करते हैं पिंग। पिंग होगा, क्या कहना है आप यस। लोगों का? यस। या इट्स वर्किंग। सी, कैसे पता कि उसी ने वर्क करवाया है? अभी तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा अपडेट। रिफ्रेश प्रीव्यू करो एक बार। सेशन। एक तो यहाँ पे देखो दिख गया 1 KB का, एक KB जा चुका है हिसाब किताब। ठीक है। ठीक है दोस्त, ओके। गो हियर, लॉग एंड रिपोर्ट, फॉरवर्ड ट्रैफिक एंड सी। दिख रहा है भाई सबको? सोर्स 2.1 और गया कहाँ? 12.2। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। ये सबको समझ में आया? अब आपको, यस उप्स, ये तो डिनाई लिख रहा है पहले वाला, अभी तो आया ही नहीं, ये तो डिनाई वाला है भाई, गया कहाँ है? परमिट वाला दिखा वहां नहीं से रहा, थोड़ा वेट करो, कई बार कनेक्शन में थोड़ा लेट आता है। आएगा, आएगा, ओ भाई आएगा। ये तो जो डिनाई हुआ था दोस्त वो वाला है, थोड़ा समय लेता है कई बार सिंक होने में, उसके लिए आप टेंशन ना लो। डैशबोर्ड में जा करके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है अभी। एक और बार पिंग करा दो, आ जाएगा। करा देते हैं, बिल्कुल करा देते हैं, देखना तो है ही हमें। रिपीट कर देते हैं भाई इसको, ये लो। हाँ। अब तो आना चाहिए, देखते हैं जी। आ गया, ठीक है दोस्त। 2.1 आईपी आई थी, 12.2 पे पास गई। अब ये भी देखना नेट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे देखेंगे? पहले वो लगा दो आप उस पर फिल्टर, हाँ ऐसे जी, लगा के। नेट पोर्ट वाला भी लगा दो। सोर्स नेट इंटरफेस ऑलरेडी लगा हुआ है, आगे देख लेते हैं, ये रहा। राइट साइड। सबको दिख रहा है भाई? यस सर। आपका आईपी लेके आप आए कौन से? ये क्या हो? एक सेकेंड, सॉरी गाइस। 2.1 की आईपी लेके आए थे, ट्रांसलेट किस में हो गया? 12.100 में। यानी कि आपको आईपी यहाँ असाइन कर दी गई है 12.100 की, और 12.100 किसकी आईपी है? इस वाले पोर्ट की है ना? यानी कि पोर्ट भी ट्रांसलेट हो रहा होगा, आप पोर्ट भी लेके आए होगे, कोई पोर्ट लेके आए होगे ना जब आप आए होगे इनसाइड से। क्या पोर्ट लेके आए वो भी देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक कॉन्फ़िग टेबल पे क्लिक करो, यहाँ पे पोर्ट भी देख सकते हो आप। सोर्स इंटरफेस, सोर्स इंटरफेस तो हालांकि जरूरत नहीं है, पोर्ट का भी ऑप्शन इधर होना नेट पोर्ट चाहिए। है, सोर्स हाँ नेट जी, पोर्ट। ये सोर्स रहा, नेट। हाँ करेक्ट। अप्लाई, लास्ट में दिखेगा जो चीज ऐड करोगे, हालांकि इधर भी उठा के ला सकते हो। सोर्स नेट पोर्ट ये था, यानी कि ये आपको ट्रांसलेट होने के बाद का पोर्ट दिखा रहा है। ये आप क्या लेके आए वो अलग बात है, आपके ट्रांसलेट होने के बाद जब नेटिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे, ठीक है? सोर्स पोर्ट हेलो, वैसे दिखा रहा है, वो 4 दिखा रहा है ना सोर्स पोर्ट में। हाँ हाँ ठीक है, ये नेटिंग वाला देख रहे हैं सब। हम्म। तो किसने कल पूछा था पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है आज हो यहाँ पे? हेलो, नहीं अमित सर, मैं राहुल हूँ यहाँ पर। है। है ना राहुल? यस सर, यस सर। ओके, सो पॉइंट इज हियर कि देखो ये पैट हो रहा है। क्या पोर्ट लेके आप आए थे अंदर से? 4।
और आप लेके क्या जा रहे हो इंटरनेट पे 60 420। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई इशू। ये यार वो वाला पोर्ट नहीं, ठीक है चलो, बाकी और डिटेल में जाएंगे। ये वाली हम बात अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, मोर डिटेल। लेकिन पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है वो समझना है कि आप, कि देखो अभी एक बंदे को इसने इंटरनेट को जाने का एक्सेस दिया ना, एक इसको, सेम टाइम पे अगर ये भी जाना चाहता है, ये भी जाना चाहता है, फिर आईपी तो इसके भाई के पास एक ही है। तो एट द एंड क्या करेगा, सेम आईपी को अगर डिफरेंशिएट करना चाहता है तो पोर्ट लगा लगा के डिफरेंशिएट करेगा। इसके पास एक ही आईपी है ना, 192.1.12.100। तो अगर एक आईपी इसने इन भाई साहब को असाइन कर दिया सो दैट दे कैन ही कैन गो ऑन इंटरनेट, तो वो आईपी तो इंगेज हो गई, और आईपी है नहीं तो बाकी लोग तो जा ही नहीं पाएंगे इंटरनेट पे। इसीलिए उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये पोर्ट को भी साथ, पोर्ट भी लगा देता है आईपी के साथ में। तो क्या करेगा, इसकी आईपी लेगा, क्या लेगा 192.168.2.1, इसका पोर्ट उठाएगा और इसको मैप कर देगा 192.168.1.12.100, और पोर्ट नंबर देखो ये जो दिख रहा है यहाँ पे। तो इसकी मैपिंग इसने कैसे कर दी, ऐसे। कोई और जाएगा तो उसकी मैपिंग कैसे करेगा, दूसरी तरह से करेगा, दिखाते हैं आपको, देखें। जैसे R3 को मुझे जाना है लेके इंटरनेट पे, कैसे जाएगा, चलो पहले पॉलिसी बनाएंगे, बिना पॉलिसी के तो जा ही नहीं पाएंगे भाई साहब। तो चलो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में चलते हैं, फायरवॉल पॉलिसी में चलते हैं, एक और पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी का नाम होगा DMG allow DMG टू इंटरनेट। नाम ऐसा रखो जिसे समझ जाओ आप बाद में। आपने सिलेक्ट कर लिया सोर्स इनकमिंग इंटरफेस DMG, तो इसमें दो इंटरफेस आ जाएंगे आपके, दोनों पोर्ट 4 पोर्ट 5, DMG 3 एंड DMG 4। देखो आउटगोइंग इंटरफेस आपने बना दिया क्या, आउटसाइड। सोर्स आपने ले लिया, अभी तो ऑल ले लिया है फिलहाल। डेस्टिनेशन भी आपने ऑल ले लिया, और आप सर्विस जो अलाउ कर रहे हो, क्या अलाउ कर रहे हो, ऑल। इनके लिए ऑल कर दे रहा हूं। नेट यहां पे भी देखो हो रहा है, लिखा है यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस। यहां पे एक चीज और लिखा है प्रिजर्व सोर्स पोर्ट, लेकिन हमने इसको इनेबल नहीं कर रखा है। इसने 4 को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, 65 वाला कुछ। हाँ 64,000 में, सब में समथिंग में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको क्लिक कर दोगे तो पोर्ट भी कन्वर्ट ये नहीं कर पाएगा। फिर क्या करेगा, आपका जो पोर्ट आप लेके जाओगे वही पोर्ट आपको दिखाएगा। चलो इसको प्रिजर्व कर देते हैं, ऑल सेशन पे क्लिक करके मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अब चलो ले चलते हैं DMG से आपको इंटरनेट की तरफ, देखते हैं पहले जा पाता है कि नहीं लेके। सिंपल R3 क्या है भाई, पिंग 192 सॉरी पिंग 8888 ना, 888 पे जा पाएगा क्या, एक सेकेंड। राउटिंग है, यस राउटिंग है, वन से गाइस, Ctrl+C, मैं पिंग करता हूँ 192.168, सॉरी 1 डॉट क्या थी विंडो उसकी को थोड़ा IP? ऊपर उठा देना, हाँ जी, वो थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा था एक्चुअली CLI, इसलिए हाँ ठीक है। 12.2 है ना उसकी IP। पिंग तो कर गया, पिंग कर गया जी, पिंग। अच्छा डिफरेंट नेटवर्क में जाना चाह रहा था मैं, ओके कोई बात नहीं, डिफरेंट नेटवर्क के लिए नहीं था ये अलाउड। तो चलो देखते हैं क्या ये हिट हुआ है। हाँ हिट हुआ है जी, एक बार और चल के कराते हैं पिंग, सो दैट कुछ और सारा आ जाए मेरे पास। रिपीट 100 कर दिया, बहुत अच्छा, गुड जॉब। चलो हमारे पास इनफ चीजें होंगी अवेलेबल। डैशबोर्ड सेशन में जाओ, दिख रहा है भाई 3.3 भाई साहब जा रहे हैं, देखो हम्म 2 में ही कन्वर्ट हो गया ना। सोर्स पोर्ट 2 लेके आया था, किसमें कन्वर्ट हो गया, तो 2 में, है ना। देखो यहाँ इसके पे साथ सर किसने फिर काम है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन फिर नहीं हुआ क्या फिर? नहीं पैट नहीं हुआ। हम्म लेकिन टेक्निकली देखो तो पैट करने की जरूरत क्या है, पोर्ट एज ट्रांसलेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। अगर मान लो बाई चांस कोई यूजर आया अंदर से, समझना कोई यूजर आया और उसने सेम पोर्ट लेकर के आ गया, जैसे ये 1 लेके आया है, एक कोई हम्म और यूजर पिंग कर रहा है वो भी 1 लेके अगर आ गया तब तो सीन हो जाएगा। क्यों, हम्म क्योंकि फिर देखो पोर्ट एज ट्रांसलेशन आया क्यों, सो दैट आप यूनिकली
एंट्री बना पाओ अपने नेट टेबल में, सो दैट रिटर्निंग टाइम पे आप उसको फिर से रिट्रांसलेट कर पाओ, राइट। अब पता लगा एक बंदा पोर्ट नंबर 1 लेके आया, उसको आपने यही 12.100 करके 1 दे दिया मैप, दूसरा फिर लेके आया, उसको भी 12.100 1 थोड़े ना दे सकते हो। तो पता कैसे करोगे कि रिटर्निंग में मैं किसको ट्रांसलेट करूं, किसको दूं वापस, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वहां पे पोर्ट को आपको ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये मैंने प्रिजर्व लिख दिया था इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर मैं हटा दूं जा करके वहां से तो फिर ये ट्रांसलेट करेगा। गाइस गेटिंग इट? हेलो? यस सर। और अगर मैंने वहां से नेट हटा दिया, वन ऑन मैपिंग कर दिया, तो एक बंदा ही सिर्फ जा पाएगा बाहर। अभी जो नेट हो रखा है इंटरफेस के बेस पे, पॉलिसी के अंदर चलो, अगर ये देखो, इसको ओपन करो, ये लिखा है ना नेट में यूज आउट गोइंग इंटरफेस, मैंने डायनेमिक आईपी पुल कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, या मैंने सेंट्रल एस नेट लगा दिया, तो उस समय पे इशू हो जाएगा। अब मैं प्रिजर्व नहीं कर रहा हूं। ये सबको समझ में आया यहां तक दोस्त? हेलो? यस सर। यस? नो? ओके, यस। ठीक है। ये तो हो गया इसकी बात। अब एक बात बताओ, मैंने किसको अलाउ किया है? इनसाइड से मैं पिंग कर पा रहा हूं, मीन्स अपने R1 से मैं R2 को पिंग कर पा रहा हूं, क्या मैं टेलनेट ले पाऊंगा? टेलनेट की टेलनेट तो सर्विस नहीं ले पा दी रहा। है ना आपने? हाँ जी, टेलनेट की सर्विस नहीं दी है ना आपने? मैंने सिर्फ ICMP अलाउड किया है। हम्म। टेलनेट क्या यूज करता है बैकएंड में? सर टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं हुआ अभी। टेलनेट तो कॉन्फ़िगर है, सब पे सर्विस किया है। अलाउ नहीं की ना फायरवॉल पे। हाँ, सर्विस अलाउ नहीं करी है, करेक्ट। मैंने सिर्फ क्या कर रखा है सर्विस में? आईसीएमपी। हाँ जी, इसीलिए तो करा था इसको ICMP। एक काम करो, चलो ऐड करो, और यहाँ पे क्या कर दो, टेलनेट है कहीं? नो, हाँ हाँ, एसएसएच के नीचे। ये रहा, कर दो, ओके, कर दिया। हम्म। अब चलो देखते हैं, मिल गया? ठीक है जी। हेलो? यस। तो हमने थोड़ा सा नेट भी देख लिया, हमने पॉलिसी भी बना ली, हमने छोटी सी राउटिंग भी कर ली, है ना? इतनी चीजें हमने करके देखी। किसी को कोई प्रश्न पूछिए। कोई क्वेश्चन है किसी का दोस्त? पूछिए। ओह, इट्स नॉट एबल टू डू ट्रांसलेशन। पूछो भाई, प्रश्न, क्वेश्चन। सर नहीं सर। EVNG मैंने तो किया नहीं है, तो प्रैक्टिस कैसे हम्म करूँगा? EVNG आपके पास नहीं है ना? आई थिंक अमर कैन असिस्ट यू। नहीं। हाय अमर, can you please assist him how he will be doing lab, like if you have any lab facility available right now? अगर EVNG नहीं है, आप इंस्टॉल करना चाहते हो, then I can help you with that. यस बिकॉज गाइस, पैकेट ट्रेसर आपको आई है। लैब एक्सेस मिल जाएगा, EVNG वाला बेस मिल जाएगा, डोंट वरी, लैब एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो ओके अनुज ओके डन। प्लीज कॉन्टेक्ट अमर। यस, यस। थैंक ओके। यू। गुड, दैट वाज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से। ओके, टिल द टाइम अपना ओके लैब रेडी सर। रखिए। और अगर आपको ये चाहिए, ये टोपोलॉजी दैट आई मेड हियर, तो व्हाट आई विल डू, set up notes, not here I think, startup. Yes, I will export everything, फायरवॉल को भी कर दें, ठीक, इसको नहीं करना है, ये कर दिया मैंने एक्सपोर्ट। और इसको मैंने क्या करना है, अब एग्जिट कर दिया, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आप इसको क्या करोगे, अपने सिस्टम में जाना, जब भी जहाँ पे भी इंस्टॉल करना है EVNG, और लैब वाले पे सेक्शन पे आके ये वाले बटन पे क्लिक करना, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप वो सिलेक्ट कर लेना जो सा आपका लैब है, और उसको लैब को करने के बाद कैंसिल करोगे, यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इंपोर्ट करोगे, वो लैब यहीं दिखने लगेगा आपको। ठीक है अमित सर, राहुल दिस साइड, एक क्वेश्चन है मुझे हम्म आपसे। जी,
मैं थोड़ा बीच में, मतलब मैं था तो आपकी ट्रेनिंग सेशन में, बट बीच में थोड़ा मेरा पर्सनल भी चल रहा था, तो मैं वो भी कर रहा था। तो मुझे एक क्वेश्चन है, जो वो आप टोपोलॉजी खोली ना सर, जो आपने वो बनाया था, या सर इसमें जो R1 R2 R3 जो राउटर्स आपने लिए हैं, इसमें आपने राउटिंग यूज करी होगी, आई थिंक सो। जी ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने /24, दैट इज अ क्लासफुल सबनेटिंग बोलेंगे, क्लासफुल एड्रेस बोलेंगे उसको हम लोग। अगर मैं इसमें से हम्म 2 राउटर मेरे क्लासफुल होते हैं और 2 राउटर मेरे क्लासलेस होते हैं, माइट बी /25 /26 समथिंग लाइक दैट, सो हम्म स्टैटिक राउटिंग केस में वर्क करेगा कि मुझे डायनेमिक राउटिंग यूज करना पड़ेगा, रिप वर्जन 2 और एनीथिंग एल्स? क्योंकि मैंने स्टैटिक राउटिंग नहीं यूज कहाँ करी है। कहाँ पे, कहाँ से? अब मेरा मेरा कहना ये है सर कि अगर मेरे पास R2 ये जो से? 4 राउटर, हाँ मतलब हाँ फ्रॉम, मैं समझ गया, आप बोल रहे हो कि इस पे मैं क्या आप करूं, ग्रुप हम बना लोग लीजिए। VLSM करें, ठीक है, जी जी। वेरिएबल यस लेंथ यस। सबनेट मास्किंग करें इस पे, करेक्ट, सबनेटिंग यूज करेक्ट। करें। और क्या अगर मैं चाहूंगा बाहर से सारी ट्रैफिक को इनसाइड आने के लिए, तो मैं आ पाऊंगा? हाँ बिल्कुल आ पाओगे, आप यहाँ समरी एड्रेस डाल दो यहाँ पे। और जैसे मान लो आपके पास नेटवर्क है, बोलिए बोलिए। या कैरी ऑन कैरी ऑन। जैसे आप चाहते हो कि इंटरनेट पे जो यूजर आए हैं, मैं देखो उस केस में होगा, आपकी कंपनी ने पब्लिक आईपी ले ली मान लो बाई चांस, और आपके पास आईपीज अवेलेबल हैं, तो आपने सबनेट छोटे छोटे बनाए और सब नेटवर्क को बांट दिया। अब आप चाहते हो कि इंटरनेट का यूजर जो भी है, अगर आपके कंपनी से बात करना चाहे तो आप सबके पास आ पाए, या ये इंटरनेट का जो ये राउटर है, आईएसपी का राउटर है, एज राउटर जो आपकी कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, यानी बाहर की सारी ट्रैफिक को आपके यहाँ भेज रहा है जो आपके लिए इंटेंडेड है, तो यहाँ पे एक समरी एड्रेस डाल दो, या आपके नेटवर्क का एड्रेस डालो। जैसे आप जो रेंज खरीदते हो ना आईएसपी से, याना से जो भी रेंज खरीदते हो आईपी का, उसका बाय डिफॉल्ट आईएसपी राउटिंग करता ही करता है आपकी कंपनी के लिए, स्टैटिक राउटिंग कर देता है वो अब आपका मैनेजमेंट है अपने कंपनी में उस पब्लिक आईपी को कैसे यूज करते हो, ठीक है। एक तो पहली चीज ये ओके। हो गई। दूसरी, अगर अब आप ये बोलोगे कि क्या मैं ऐसा कोई राउटिंग कर दूं जो कि सबसे मेरी कनेक्टिविटी बनवा दे मेरा ये फायरवॉल, तो वो पॉसिबल अभी नहीं है ना यहाँ पे। इस पे जा करके अलग से आपको राउटिंग करना पड़ेगा, सो दैट कि इसके पीछे अगर कोई नेटवर्क है उसको कम्युनिकेट कर पाए ये फायरवॉल। अंडरस्टूड? लेकिन करेक्ट हाँ, करेक्ट सर, यहाँ राइट। पे आईएसपी लेवल पे जाकर के आप स्टैटिक राउटिंग वो कर सकते हो खुद से, लेकिन चूंकि लैब है इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं, हमने डिफॉल्ट राउटिंग इधर की अंडरस्टैंड। तरफ, ठीक है। अंडरस्टैंड सर। दैट इज सर डिफॉल्ट पॉसिबल, राउटिंग। अगर आपके पास कोई केस होगा, कम अप विद दैट केस, आई शो यू हियर बाय डूइंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ठीक है। या एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Okay, sir. We can, sum up the session today. I think you have explained very well. Okay, and so we can, meet in next session. Guys, you can enroll who have not enrolled yet, right? You can connect with the counseling team. Okay, sir. Thank you for the time. Thank you guys for the थैंक यू long सो time. मच गाइज, Thank Yes. you. Thank stay you very much, sir. tuned and please keep learning. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर।